and all the leading branches. You can name them. For example, IBM, HCL, and IIT. And he has a rich experience. He's a data scientist as well as an author. So I hope this next 2 hours you will learn a lot of things and you'll get an insight into it. So I'm handing over to Mr. Rajinder. He'll continue with it. Thanks, Kishore. Okay, before we start, I just want to know the audience. So that because the audience is mixed MBA and MCA. I request you all to those who have belong to MCA, raise your hand. MCA students. कौन कौन MCA से है, then they can comment. Raise hand का option नहीं है तो. But this will help me to make it technical or non-technical. Because if I have the sufficient number from MCA, I'll make it technical. I will take some algorithms also. If it's not from the MCA background, so we'll take up semi-technical cases. So we'll take up the use case like analytics portions rather than going technicalities. I hope I'm audible, Kishore. You're audible, Rajinder. Okay. So I need response from participants, those who are from MCA or MBA. I'm looking for MCA first. You can unmute and say yes also, or you can type a message. कितने लोग MCA से हैं? Aditya MBA, okay. Aniket MBA, okay. Good. So as I am not having okay, so we'll make it a moderate one. So we'll take up some example from algorithm also, but we'll try to make it more on business analytics sort of things, so that the MBA students can make science of data points. I'll try to not make it more technical so that this MBA students can make it more relative to their fields. ठीक है, तो start करते हैं. So yes, you can load on your hands. Thank you. So my next question would be that industry trending technology. When we say it includes so many tools and technology available to us to make a business intelligence. Anybody from you can help me to understand what is business intelligence? Students from MBA. What is business intelligence? You can unmute or you can type. I try to lead the subject accordingly. Business intelligence. Okay, so I'll take up the example. So it will help you to understand. So when we say business intelligence, you can say it's a AI enablement to business to make their decisions effectively and more robust to make more profit, or we can reduce the cost also. So we'll take up the cases where we are including machine learning to enhance the business intelligence for a business perspective. So when you go and to as a manager or as a product manager, or you can say marketing manager or HR manager sort of things. So this ecosystem will help you to understand the exact requirement of industry, what they are looking from you, so that you can help them to make more profit or reduce cost. So let's take a machine learning and business intelligence parallelly, because they are not say independently, they are helping each other to make better decisions for organizations. So first, the Kishore has already given this introduction part, so I'm skipping it. So let's start with first machine learning case. So primarily the focus would be when you say machine learning, it is not like कि मुझे ज़्यादा Python चाहिए, मुझे PhD करनी है algorithm के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है. So we'll be focusing on how your tools like Power BI, Tableau, even Excel do have machine learning. ऐसा नहीं है सबके पास जो आपके पास मुझे Python आना चाहिए या मेरे पास कुछ R आनी चाहिए, कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, ऐसा नहीं, स्पेसिफिकेशन नहीं है. So if you are from MBA or even you are from MCA also, doesn't mean कि मुझे कोई PhD चाहिए एल्गोरिथम्स के अंदर. आपको बिजनेस आपको मैंने पता हो कैसे बिजनेस रिलेट करता है.
So machine learning is nothing but developing a solution. The solution which enable business to take forecastings. It help business to take forecasting based on their historical data points. Likewise, जैसे चंद्रयान 3 जो लैंड हुआ है, इसने क्या लर्निंग करी, जो लास्ट चंद्रयान 2 की जो फॉल बैक थे या जो डेटा मिस्टेक्स थे उसके बेस पे इसने डेटा को सेंट्रलाइज करते हुए, डेटा को क्लीन करते हुए फ्यूचर फोकस करके एकदम एग्जिट पाथ को कैरी फॉरवर्ड करा और लैंड कर गया। मशीन लर्निंग में एक सिस्टम फॉलो करता है, जो प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स हमारे पास में उसको फॉलो करते हुए बिजनेस या कोई सोल्यूशन जो आप डेवलप कर रहे हो उसको आर्टिकुलेट करें। जैसे एग्जांपल पर से गूगल मैप आपके पास है। गूगल मैप में ऐसा नहीं, आपके पास जो डेटा पॉइंट्स आपके पास आते हैं वो रियल टाइम केस के होते हैं। यस, कुछ पोर्शन रियल टाइम का केस का होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेटा आपका हिस्टोरिक होता है। जैसे आपके पास कोई लोकेशन है, आपको एक्स लोकेशन से वाई लोकेशन जाना है, तो गूगल मैप में ऑलरेडी वो लोकेशंस मैप्ड है कि इस डिस्टेंस से उस डिस्टेंस तक डिस्टेंस कितना है। अब वहाँ पे कंजेशन चाहिए उसको या ट्रैफिक है या नहीं, वो रियल टाइम केस किया जाता है। तो डिस्टेंस आइडेंटिफाई करना, कंजेशन जो आपके पास विजुलाइज हो रहा है वो सैटेलाइट के बेस पे या उसके जो इंटरनल एल्गोरिथम के बेस पे कंजेशन को डिफाइन करता है कि इतना कंजेशन वहाँ पे है। तो ये पॉसिबिलिटी उस डिस्टेंस को, जैसे 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, इन जनरल वो आपका 15 मिनट्स लेता है या 100 मिनट्स, सॉरी 20 मिनट्स 30 मिनट्स लेता है, तो उसके एंगेज में कंजेशन की वजह में ज्यादा बता सकता है आपको। तो मशीन लर्निंग इट्स अ सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन विच हेल्प यू टेक डेटा फ्रॉम योर हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट। जैसे आपने इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू केस में जो आंसर करते हो, आंसर आपके स्पॉटेनियस आंसर नहीं होती, आपके पास ये हिस्टोरिक डेटा जो सीख रखा आपने आपके जो प्रीवियस कॉलेज लाइफ में या जो अपने वर्किंग एक्सपीरियंस उससे आपसे रिस्पॉन्ड करते हो। तो वही भी मशीन लर्निंग आपका माइंड अपने आप को ट्रेन करता है आंसर को रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो वो केस आपके पास कुछ है, देखेंगे। बिजनेस इंटेलिजेंस थोड़ा सा स्लाइटली मोर इंक्लाइन टू द नंबर्स। मशीन लर्निंग मोरलेस कोडिंग बेस्ड ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं मार्केट में, लेकिन जो बिजनेस इंटेलिजेंस है मोरलेस नंबर बेस पे ज्यादा। व्हेन यू से कि मुझे किसी सीटीओ, सीईओ, सीएफओ को कुछ कम्युनिकेशन देना है, तो दैट कम्युनिकेशन शुड बी बिजनेस इंक्लाइंड। ऐसा नहीं मैं उसको ज्ञान दे रहा हूँ, समझ नहीं आएगा उसको, मैं कहूँगा लेस प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, देन द अदर पर्सन टेक दिस नंबर सीरियसली। तो इसमें आपके पास बिजनेस में इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम वेर से स्टार्ट फ्रॉम गेटिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, उसके बाद डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटीज हैं आपके इंडिविजुअल्स की, उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जहाँ पे मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है डेटा कलेक्शन की, डेटा कलेक्शन कैन बी फ्रॉम एनी सोर्स। जैसे आपके केस में मैं कहूँ फेसबुक आपके व्हाट्सएप का डेटा कलेक्ट करता है, ये ट्राई करना, ये बिजनेस स्ट्रेटजी है फेसबुक की। व्हाट्सएप के ऊपर कोई आप चैट कर रहे हो, चैट में सपोज यू प्लानिंग टू गो समवेयर, जैसे मैंने कहा मुझे दिल्ली विजिट करनी है, दिल्ली में कुछ चैटिंग चल रही है कि दिल्ली में लोकेशन क्या है, वो क्या है, उस कम्युनिकेशन को फेसबुक क्या करता है, उसकी डेटा पॉइंट्स को, उसका कीवर्ड्स को लेके फेसबुक पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे ऐड भी दिख सकती है आपको कि दिल्ली का टूर प्लान ये है या किसी लोकेशन का टूर प्लान ये है, उसमें प्राइस ये है। पॉसिबिलिटी ये है कि इनकेस आपके पास जो ऐड पे आप क्लिक करते हो तो आपको कॉल बैक भी आ जाती है कि बस ये पैकेज हमारा यहाँ जाना है। तो व्हाट्सएप एंड फेसबुक दे आर शेयरिंग डेटा इंटरनली सो दैट दे कैन मेक अ बेटर नंबर्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो डेटा कलेक्शन से लेकर उसको रेवेन्यू फॉर्मेशन तक ये पूरा इकोसिस्टम है, जिस इकोसिस्टम को कैरी करते हैं। जैसे कि मैं इसको लेट मी जूम इट। जो इकोसिस्टम मेरे पास है, फर्स्ट इकोसिस्टम स्टार्ट विद डेटा एक्सट्रैक्शन। ये डेटा मेरे केस में, जैसे मैं एग्जांपल दिया आपको, व्हाट्सएप है मेरे पास। व्हाट्सएप में जो आप चैट करते हो, यस चैट सिक्योर है, इट इज नॉट लाइक दैट मैं आपकी चैट देख सकता हूँ। यस, फेसबुक उस चैट को यूज करता है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के लिए। उस डेटा में से जरूरी नहीं सारे चैट वो रीड करके मार्केटिंग में यूज करता है। वो कहता है मेरे पास जो मेरे वेंडर्स है उसको स्पेसिफिक कुछ चैट उनको रिक्वायर्ड है किसी डेटा प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो उस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद डेटा क्लीनिंग आपके पास है, उसके डेटा क्लीन करके स्टोरेज करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, सो मेनी थिंग्स करते हैं। उसके बाद में वो उसको अपने प्रॉफिट के लिए कैरी फॉरवर्ड करता है। तो व्हाट्सएप काफी, मतलब यू आर सेइंग यू आर यूजिंग फ्री नहीं है, फेसबुक उसको अपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए यूज करता है। ऐसे ट्रू कॉलर आपके पास है, ट्रू कॉलर दे आर यू आर नॉट बीइंग पेड फॉर दैट, मैंने आपके पास कोई पेमेंट उसने नहीं करी, लेकिन फिर भी आपकी सर्विस के लिए ट्रू कॉलर आपको आपकी डेटा पॉइंट्स को यूज करके दूसरे यूजर को इनकेस नंबर कहीं वो नहीं मिलता तो आपके डेटा पॉइंट्स में आपके कॉन्टेक्ट में जो नंबर है उसके अगेंस्ट जो नाम आपने दे रखा है वो नाम दूसरे पर्सन को फ्लैश कर सकता है। इनकेस किसी कॉल को, जो फर्स्ट टाइम कॉल आपके पास आई है, उसको आपने स्पैम ट्रीट कर दिया, ऐसे स्पैम 3 बार या 5 बार जो उसकी पॉलिसी है व्हाट्सएप मतलब ट्रू कॉलर की, आपने स्पैम सेंड कर दिया, उसको क्लिक कर दिया, तो स्पैम आइडेंटिफाई कर देता है यूजर्स को।
तो ये इकोसिस्टम क्या आपसे ही काम करा के आपके ही इंफॉर्मेशन को, आप ही के डेटा को, आपके ही कॉन्टेक्ट को यूज करके ट्रू कॉलर रेवेन्यू लेता है। कहाँ से? वो अपना पेमेंट गेटवे उसके पास ऐड दिखाता है, या पेड सर्विस भी है उसकी जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। तो बिजनेस एनालिटिक्स ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ कोड ही करना पड़ता है, मुझे बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में कोई रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल आपके पास है, उसको मुझे मेंटेन करना है, क्रिएट करना है, और हो सकता है पॉसिबिलिटी मुझे कोई ऐसा इकोसिस्टम देना कि प्रिडिक्शन दे पाए। जैसे मैं अगर सपोज मैं प्रिडिक्ट कर पाऊँ सब किसी भी यूज केस को, जैसे जो एमडीआई है, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, वो प्रिडिक्शन देता है बारिश होगी नहीं होगी। सपोज आपको पहले एडवाइजरी आ जाती है कि सपोज एक लोकेशन पे हैवी रेनफॉल का एक्सपेक्टेशन है, तो आप पॉसिबिलिटी क्या होता है, आप मिटिगेशन प्लान करते हैं कि मैं जाता हूँ तो मैं रैमराला लेके जाऊँ या कुछ और प्लान लेके जाऊँ। तो उससे क्या कि बिजनेस भी उस रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करता है कि इनकेस मुझे पहले से पता ला दिया किसी यूजर ने कि ये पॉसिबिलिटी है, स्ट्रेटेजिकली मुझे फॉल बैक करेगी, लॉस हो सकता है, तो या तो प्रोडक्ट को रिवैम्प कर लूंगा या कॉल बैक कर लूंगा। कई केसेस ऐसे, जैसे कई प्रोडक्ट, जैसे मैं आपके पास कैडबरी है, कैडबरी काफी अच्छा ब्रांड है आपके पास कैडबरी चॉकलेट्स के अंदर, लेकिन 2000s के अंदर में एक केस आया था कैडबरी चॉकलेट के अंदर, उसको एक कोई वॉर्म्स मिला था। उस वॉर्म के चक्कर में क्या उसका इतना बैड वर्ड हो गया मार्केट में, तो चॉकलेट बिकनी बंद हो गई। ये केस स्टडी है, ओपन में अवेलेबल है। उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की वजह से कैडबरी ने पूरी पैकेजिंग चेंज करी अपनी, नई नई पैकेजिंग के साथ मार्केट में आया। ऐसे मैगी का केस स्टडी आपके पास है। मैगी आपका अराउंड 2012 के आसपास में केस था, एग्जैक्ट ईयर पता नहीं है क्या है फॉल। उसमें क्या है कि मैगी के साथ भी ये केस हुआ था कि उसके जो किसी लैब के अंदर उसकी न्यूट्रिशन को चेक किया गया, उसमें लेड की जो क्वांटिटी हाई करी गई। तो इसका जो बिजनेस इंटेलिजेंस है, पूरा इकोसिस्टम इस कॉन्टेक्स्ट कैरी करता है कि मुझे कस्टमर सेंस जो सेंटिमेंट है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, अदरवाइज मुझे चैलेंज हो जाता है। उस पर्टिकुलर यूज केस की वजह से इतना लॉस हुआ नेस्ले को। नेस्ले जो मैगी का ब्रांड है, पूरा पूरा उसको लॉट ही पूरा उसको स्क्रैप करना पड़ गया। कितनी फैक्ट्रीज, कितने वेयर हाउस आपके पास, सारे सारे उसको स्क्रैप करने पड़ गए बिकॉज ऑफ एक सेंटीमेंट आपका ऐसे चला था कि बस उसमें लैडी है, तो उसकी डिमांड भी रिड्यूस हो गई थी, उसकी प्रोडक्शन भी रिड्यूस करनी पड़ी, तो काफी मेजर लॉस हो गया था। तो बिजनेस इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी और यू कैन से टेक्निक विच हेल्प बिजनेस टू रिड्यूस देयर लॉस। दे कैन एंटिसिपेट द कस्टमर बिहेवियर बिफोर एनीथिंग फॉल बैक टू देम। कोई ऐसी चीज आपके पास है कि मार्केट में आने से पहले एक दो कस्टमर ने ही आपको फीडबैक देना स्टार्ट कर दिया कि ठीक नहीं है, तो वो रोल बैक हो जाती है। जैसे अभी मूवी थी कोई, उस मूवी के रिव्यूज इनिशियल डेज पे ऐसा आ जाते हैं कि वो नहीं चल रही, तो काफी रॉन्ग सेंटीमेंट मार्केट में चला जाता है, तो वो जो प्रोड्यूसर्स है उसको या चेंज करेगा या उसको रोल बैक मारेगा, अदरवाइज मेजर फॉल बैक आ जाता है बिजनेस में। तो वो आपके पास वही केस है। तो मेन आपके पास जो ऑपरेशंस डिसीजन मेकिंग है, इसको फोकस करते हैं। और ये कोडिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, इसको टूल के बेस में कर सकते हैं। जैसे यू हर्ड अबाउट एक्सेल, पावर बीआई, टैबल्यू, क्लिक, आईबीएम कॉग्नोस, काफी सारे टूल्स हैं, 25 टूल्स हैं जो बिजनेस इंटेलिजेंस में हेल्प करते हैं। इन केस आपका कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, स्टिल यू डू हैव ऑप्शन ऑफ डूइंग एनालिटिक्स ऑन टूल्स। फोरकास्टिंग तक टूल्स में आपका ऑप्शन दे रखा है, जिसको हम अभी इस वर्कशॉप में देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास डेली बेसिस के केस में मशीन लर्निंग का जो रेवेन्यू मॉडल है या बिजनेस एनालिटिक्स का रेवेन्यू मॉडल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है नेटफ्लिक्स एंड प्राइम और यूट्यूब है। इनके लिए कई केस में यूट्यूब का तो एकदम फ्री केस आपके पास में क्लासिक एग्जांपल है। यूट्यूब आप यूज करते हो फ्री कहने के लिए, लेकिन यूट्यूब आपको 5 सेकंड, 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक की ऐड दिखाने के लिए मैंडेटरी कर देता है बस। इनकेस मैं एज ए बिजनेसमैन हूँ, मैंने कहा कि मेरा यूजर कभी भी लेट्स से मशीन लर्निंग सर्च करता है यूट्यूब पे, तो ये जब भी कोई वीडियो आएगी उसमें 15 मिनट का मेरा ऐड चलेगा, वैसे फ्री टेक्नोलॉजी का ऐड चलेगा, बिकॉज फ्री टेक्नोलॉजी इन दिस से कंसल्टेशन ऑफ मशीन लर्निंग एंड ऑल। तो मैंने वो फुल पेमेंट करी है उसकी 30 सेकंड की, 30 सेकंड से पहले उसको आप क्लोज नहीं कर सकते। कई केस में आपके पास स्किप ऐड का ऑप्शन आता है 5 सेकंड के बाद में, वो पूरा रेवेन्यू मॉडल यूट्यूब का ही है। अब यूट्यूब से आप जो वीडियो देख रहे हो फ्री है, लेकिन वो फ्री कहीं ना कहीं उसको रेवेन्यू मॉडल में कन्वर्ट कर लेता है। ऐसे नेटफ्लिक्स का केस आपके पास है। नेटफ्लिक्स में आपके पास जब भी आप प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब सब में एक पर्सनलाइज कंसेप्ट आता है कि यूट्यूब पे कोई आपने वीडियो सर्च करी आज, और उस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में आपने डेटा वीडियो देख ली, उसके बाद में नेक्स्ट डे आते हैं, तो जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन वीडियो दिखती है वो आपकी लास्ट सर्च के कॉरस्पॉन्डिंग दिखती है। इसको हम कहते हैं पर्सनलाइज रिकमेंडेशन इंजन। पर्सनलाइज रिकमेंडेशन इंजन या सर्च इंजन कैटेगरी में रखा जाता है इसको। तो इसमें भी मशीन लर्निंग इकोसिस्टम है आपके पास में बैकग्राउंड में। इस एमएल को यूज करके तीनों ही कंपनी, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो, दे आर रनिंग यूज मनी। अब ऐसा पॉसिबिलिटी, सपोज नेटफ्लिक्स में सपोज कोई आपका एक्टर है, इस एक्टर की मूवी आपने देखी, नेक्स्ट टाइम जब नेटफ्लिक्स ऑन करते हो या प्राइम वीडियो ऑन करते हो, तो आपको उसी एक्टर के कॉन्टेक्स्ट में काफी सारी
रिकमेंडेशन नीचे दिख जाती है कि ये सेक्टर की लास्ट टाइम बिकॉज यू हैव व्यू दिस वीडियो यू मे आल्सो लाइक टू व्यू दिस वीडियोस, वो रिकमेंडेशन नीचे आ जाती है। यूट्यूब भी ऐसे ही करता है, जो राइट हैंड साइड पर टॉप टू बॉटम लिस्ट चलती है आपकी, वो रिकमेंडेशन वीडियोस ही हैं जो प्रीवियस सर्च वीडियो को कैरी फॉरवर्ड कर रही है। तो ये ML बिजनेस को रेवेन्यू जनरेशन के लिए हेल्प कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको मशीन लर्निंग समाज सेवा के लिए है। यस, फ्यू ऑफ द केसेस यहाँ पर मशीन लर्निंग कुछ सोशल एक्टिविटीज भी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बिजनेस मशीन लर्निंग को रेवेन्यू मॉडल के लिए करते हैं। कई एक्टिविटीज ऐसी है, चंद्रयान में मशीन लर्निंग इकोसिस्टम में क्या किया, जो आपका लैंडिंग ऑपरेशन था फुली ऑटोमेटेड था, कंप्लीटली ऑटोमेटेड था। उस अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से उसे सेंसर्स के बेस में डिसीजन लेके उसको लैंड करना था। मशीन लर्निंग क्या, उस सेंसर के कॉन्टेक्स्ट में डेटा रीड करके उसको प्रोसेस कर रही थी रियल टाइम केस में, उसमें एरर के चांसेस काफी मिनिमाइज हो जाते हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपका रेवेन्यू बनता है बिजनेस इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, वो आपका पर्सनलाइज रिकमेंडेशन बेस्ड एप्लीकेशन से। कभी भी आप जैसे कोई क्लोथिंग शॉप पे जाते हो, अब क्लोथिंग शॉप में क्लोथिंग जेनरिक क्लोथिंग भी होती है आपके पास की रेडीमेड है, आपने बाई कर लिया। दूसरा जो आपका पर्सनलाइज टेलर से आप अपने पैरामीटर्स देख के बनवाते हो, तो पैरामीटर देख के बनवाना थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि वो पर्सनलाइज्ड है। तो पर्सनलाइज के लिए यूजर हमेशा पे करने को रेडी होता है। रेडीमेड सोल्यूशन जो सारे देखते हैं तो सब देखना तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देती है आपको, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो वीडियो देखी उसके कॉन्टेक्स्ट में ही वीडियो आपको विजिबल होगी, क्योंकि तीनों ही जो चैनल आपके पास स्क्रीन पे है, तीनों के पास बिलियंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट शॉर्ट मूवीज से लेकर कंप्लीट मूवीज तक का डॉक्यूमेंट्री तक अवेलेबल है। तो इसमें सारी वीडियो एक साथ यूजर को दिखाना पॉसिबल भी नहीं है और यूजर के कॉन्टेक्स्ट का भी ठीक नहीं है। तो इसलिए सारी एप्लीकेशन, सारी बिजनेस जो यूटिलिटीज है पर्सनलाइजेशन पे फोकस करते हैं। जो रेवेन्यू मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जो ले रही है समय, यू नेम्ड फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जितने भी तीनों है आपके पास, इवन लिंक्डइन, ये रेवेन्यू इनका आने का पर्पज सिर्फ इसलिए कि वो पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस दिख रही हैं। फेसबुक एग्जांपल लेते हैं, सपोज फेसबुक के ऊपर आपके पास यू मे बी हैविंग अराउंड 1000 फ्रेंड्स। अब 1000 फ्रेंड्स में सबका पोस्ट आपको देख नहीं सकता तीनों ही लोकेशंस पे। ट्विटर ले लो, फेसबुक ले लो, इंस्टा ले लो, वो क्या करते हैं, जो आप फ्रिक्वेंटली व्यू कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, डिसलाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ये तीनों ही इकोसिस्टम पर्सनलाइज इकोसिस्टम को रेट करने की कोशिश करते हैं कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या था या प्रीवियस बिहेवियर क्या था, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये रिकमेंडेशन इंजन जनरेट करते हैं और आपको उससे कनेक्ट करके रखते हैं। जैसे आप रील देखते हो फेसबुक पे, जो चल रहा है आपके पास, होता क्या है, एक रील के बाद दूसरी रील जो आती है, दूसरी बार तीसरी, तीसरी बार चौथी, रील्स आपस में कनेक्टेड होती हैं या प्रीवियसली जो अपने डेटा प्रीव्यू कर रहा है उस डेटा के कॉन्टेक्स्ट में ही कैरी फॉरवर्ड कर रही होती है। तो ये पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है जिसको कैरी फॉरवर्ड कर, रेवेन्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब, ये 6 की 6 आपके पास जितने भी यूज केसेस हैं, सबका रेवेन्यू सब इसी वजह से आता है। और ये नहीं है तो बिजनेस एनालिटिक्स या कोई भी इकोसिस्टम नहीं चलता। कितने सारे आप, यू हर्ड अबाउट ऑर्कुट, ये आपके 2003-4 के आसपास में आया था ये। ऑर्कुट क्या था, इट इज सेम लाइक फेसबुक, इसका था, गूगल का था, लेकिन वो चल नहीं पाया, उसका रिकमेंडेशन इंजन थोड़ा सा चैलेंज कर गया था। तो बिजनेस को स्टेबल करना, उसको सस्टेन करना, उसको लॉन्ग टर्म के लिए चलाए रहना पर्सनलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास में ये अगेन बिजनेस इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में ही है सारा, एमएल को यूज कर रही है। गूगल असिस्टेंट आपके पास है, सिरी यू हर्ड अबाउट, एंड अमेजोन एलेक्सा, ये तीनों ही इकोसिस्टम जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये दे आर यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी करके यूटिलिटी है आपके पास मशीन लर्निंग में, जिसमें हम एक यूजर की कम्युनिकेशन को या उसका जो सेंटेंस ने बोला, उस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में उसकी मीनिंग को सिस्टम रीड करके रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। अब गूगल असिस्टेंट आपका हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये काफी ट्रेंड है, मतलब आप इवन आपका एलकेजी का बच्चा जो इवन नर्सरी में है, वो भी इसमें अपनी पोएम सर्च कर सकता है इसको रिक्वेस्ट करके, रादर देन टाइपिंग। होता ना कई सारे इस समय बच्चे आपके गूगल असिस्टेंट ऑन करके प्लीज प्ले द वीडियो फॉर सो एंड सो, वो वीडियो की लिस्ट भी वहां दे देता है। सिरी के केस में भी यही है, एप्पल वाले केस में। देन एलेक्सा, यू आर अबाउट डिवाइस आपके पास है, उस डिवाइस पे मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस समय कनेक्टेड है, या आपके घर के एसी से लेकर आपके मोबाइल तक सबको आप एलेक्सा से कम्युनिकेट करा सकते हो। काफी सारा ऑप्शन है। तो ये स्मार्ट वर्चुअल असिस्टेंट है, अगेन पूरा बिजनेस मॉडल है। इनकेस में सपोज एक एसी लेने गया, उस एसी को मैं कहता हूँ वॉइस कमांड पे चलेगा, दूसरा एसी मेरा है ये नॉर्मल चल रहा है, इवन रिमोट भी नहीं है उसके पास। तो यूजर क्या करे, कोशिश करे कि पहले तो रिमोट बेस हो जाए, पहली प्रायोरिटी है उसकी। सेकंड प्रायोरिटी के चलो वॉइस बेस हो जाए तो अच्छा है मेरे लिए, मुझे रिमोट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बैठा हूँ, मैंने ऑन करने की कमांड दी और ऑन हो गया। तो उससे क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाती है।
और जितनी ज्यादा वैल्यू उस प्रोडक्ट में होगी उसकी प्राइसिंग पॉइंट बढ़ जाती है। जैसे एक नॉर्मल कार आपके पास है, कोई भी नॉर्मल कार लेते हो आप, जैसे मारुति की कोई कार ले ली, जैसे 6 लाख से लेकर 10 लाख की रेंज में आ रही है, और वही आप टेस्ला ले जाओगे तो आप सीआर में स्टार्ट होती है वो, 80 लाख से ऊपर की स्टार्टिंग में। जाना तो उसमें भी 4 पहिए, उसमें भी इंजन उसमें भी है, लेकिन उसकी प्राइसिंग हाई और डिमांड हाई इस सब इसलिए कि उसमें आपकी नेविगेशन सिस्टम है, वर्चुअल असिस्टेंट आपको दे रखा है उसने उसको प्रॉपरली। आपको बस लोकेशन डिफाइन करनी है कहाँ से कहाँ जाना है, वो अपने आप ही पूरा लोकेशन मैप करेगा, लोकेशन फाइंड आउट करेगा, बेस्ट रूट देखेगा, बेस्ट रूट पे लेके जाएगा। तो इस समय मार्केट बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मशीन लर्निंग बिजनेस इंटेलिजेंस को हेल्प कर रही है, बिजनेस को रेवेन्यू अर्न करने के लिए। सेकंड पॉइंट था ये। फर्स्ट पॉइंट था आपके पास पर्सनलाइज, सेकंड पॉइंट स्मार्ट वर्चुअल असिस्टेंट। थर्ड पॉइंट आपके पास सबसे ज्यादा यूज होता है इस समय, आपके पास इंडिया सबसे ज्यादा यूज कर रहा है इसको इस समय, मेडिकल डायग्नोसिस। अब ये सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है डायग्नोसिस में आती है कि बिफोर लेटिंग एनी डिजीज एट फाइनल स्टेज, जैसे कैंसर हो गया, कोई चीज है आपके पे जो एक फाइनल स्टेज में आइडेंटिफाई होती है तो दिक्कत होती है, उसको क्योर करना ना के बराबर हो जाता है। तो इनिशियली क्या होता है, जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, डॉक्टर्स की अपनी लिमिटेशंस है, बिकॉज वो ह्यूमन बींग्स ही हैं। ऐसा नहीं कि हर डॉक्टर 20 साल बाद जो है उसको एक्सपीरियंस मिलता है वही आपको आज डॉक्टर जो बना उसको मिल जाएगा, नहीं पॉसिबल है। तो ये जो स्पेशलाइजेशन है निश डॉक्टर्स की, जो हाईली एक्सपीरियंस है, उनकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी रहती है अक्रॉस द ग्लोब। तो मशीन लर्निंग या एआई या बीआई क्या करता है, इन सारी चीजों को कनेक्ट करता है। से मैंने कहा कि एक ऐप आई है संजीवनी, आपने यूज करी। उस संजीवनी में क्या आप ऑनलाइन चैट करके डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हो, वो मेडिकल आपके पास, इवन आप वहाँ पे अपने एमआरआई या रिपोर्ट आप अपलोड कर सकते हो। उस ड्यूरेशन में, जैसे हमारी रिपोर्ट है, कोई रिपोर्ट आपने करी, से एक्सरे है, एक्सरे अपलोड कर दिया, एक्सरे को अपलोड करने के बाद आपने उस एक्सरे में जो मेडिकल एमएल लगा हुआ है सपोज, में एक्सरे में आपकी चेक करें एक्सरे में कोई ऐसी अनॉमलिटी तो नहीं है जो डिजीज हो सकती है। तो डॉक्टर को जाने से पहले वो उसको पहले ही स्कैन करके दे दिया कि ये पॉसिबिलिटी है, इस एक्सरे में इसको इस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। डॉक्टर को टाइम बचता है डॉक्टर का। अथवा एक ही एक्सरे को देखिए टाइम कंज्यूम करे, 15-20 मिनट लगाए उसमें, तो उससे जल्दी क्या है, मशीन में एक्सरे डाला, मशीन ने उसकी ऑब्जर्वेशन दे दी, ऑब्जर्वेशन लेके आगे चला गया वो। जितने भी अच्छे ब्रांड्स आपके पास हॉस्पिटल के हैं, सारे अपने आप को कहते हैं एआई इनेबल्ड या ऑटोमेटेड ऑपरेशन थिएटर्स या एआई ऑपरेशन थिएटर्स, वो सारे मेडिकल डायग्नोसिस को ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जहां भी आपके पास में निश टेक्नोलॉजी आ जाती है, एआई इनेबलमेंट आता है, वहाँ चांसेस ऑफ एरर रिड्यूस हो जाते हैं। तो मेडिकल डायग्नोसिस जो एक फील्ड है आपकी, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर नाउडेज, जो आपके किसी भी डिजीज को इनिशियल स्टेज पर आइडेंटिफाई करके क्योर करने की कैपेसिटी को बिल्डअप कर रहा है। इंडिया कुछ ही कंट्रीज में अवेलेबल है, मतलब कुछ ही कंट्री पास ऐसी कैपेसिटी है जो इनिशियल डेज पे अपनी सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके क्योर करने की कैपेसिटी रखता है। इसमें आपके पास एटॉमिक रिसर्च हो गया, बाकी चीजों के उस केस को भी हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास क्या, इसको पहले ट्रेन किया जाता है कि क्या क्या ऑप्शन है अवेलेबल जिसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है, इसमें अगेन AI ML DLA कंफ्यूजन है सबके पास में, उसको सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद BI पे आएंगे। अब जो केस आपके पास है, मेन चीज है जो यूजर को दिखती है, जो यूजर यूज करता है वो एआई है। एआई हमेशा एंड आउटपुट है किसी भी इकोसिस्टम का। जैसे मैं गूगल ऐप यूज कर, गूगल मैप यूज करो, एआई इनेबल एप्लीकेशन है, उसके अंदर में मशीन लर्निंग यूज हो रही है। मशीन लर्निंग में इंटरनली डीप लर्निंग इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। डीप लर्निंग के केस में काफी टेक्निकल टर्म्स आ जाते हैं, न्यूरल नेटवर्क वगैरह आ गया, इमेज प्रोसेसिंग आ गई, वॉइस प्रोसेसिंग आ गई, एनएलपी प्रोसेसिंग, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद मशीन लर्निंग की इकोसिस्टम को फुलफिलमेंट देके एआई का सोल्यूशन डेवलप किया होता है। कोई भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा एमएल बेस्ड या डीप लर्निंग बेस्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा मार्केट में, है ही नहीं पॉसिबिलिटी। प्रोडक्ट मिलेगा एआई बेस्ड प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट सर्च करोगे एआई इनेबल्ड ही मिलेगा, इवन तो उसके इंटरनल में एमएल चल रहा है, डीएल चल रहा है, सारी चीजें, लेकिन प्रोडक्ट आपका एआई इनेबल्ड है। जैसे आपके पास में अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी ऐप लेते हैं, उस ऐप के केस में जो ऐप का फ्रंट एंड होता है वो आपका जो दिख रहा है वो एआई है, जो फ्रंट एंड दिख रहा है उसके अंडर में जो आपकी एल्गोरिदम चल रही है वो सारी एमएल की है या डीएल की एल्गोरिदम चल रही होती है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए। लेकिन फ्रंट एंड में जो डेटा दिखता है वो आपका एआई आउटपुट है। गूगल मैप हो गया आपके पास में, या लैंग्वेज ट्रांसलेशन आपके पास, गूगल ट्रांसलेटर आपके पास है, वो भी इंटरनली जब भी आपको हिंदी टू इंग्लिश करते हो, इंग्लिश टू हिंदी या वाइस वर्सा लैंग्वेज कर रहे हैं आप अगर, तो जो फ्रंट एंड जो स्क्रीन दिख रही है आपकी वो आपकी एआई स्क्रीन है। उस स्क्रीन के कॉन्टेक्स्ट में आपके पीछे एल्गोरिदम्स, एआई बेस्ड एल्गोरिदम्स या एमएल, एआई बेस्ड एल्गोरिदम जो होती है आपके एमएल को कॉल करके डीएल से कम्युनिकेशन करा के काम करा लेती है। तो ये आपके ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन कैरी करते हैं, और जो भी सोल्यूशन आपको मिलेगा
एज एन प्रोडक्ट वो AI बेस्ड ही होगा। चाहे आप सैटेलाइट से लेकर आपके जो छोटे मोटे गैजेट्स हैं आपके जो ऑटोमेटेड हैं उसको हम AI इनेबल, जैसे आपके पास सोफिया करके आपका एक रोबोट है, दैट्स ए AI रोबोट। उसमें काफी सारे इकोसिस्टम ऐसे हैं जो आपके पास मशीन लर्निंग बेस पे इको ड्राइव कर रखे हैं, DL ड्राइव कर रखा है, डीप लर्निंग वगैरह। तो लेकिन उसको हम AI रोबोट बोलते हैं, तो कि वो ह्यूमन बीइंग की तरह से रिएक्ट कर पाता है। उसका फ्रंट एंड आपका AI है, सारी चीजें बैक एंड में चल रही है। और बिजनेस जब भी आपके कोई प्रोडक्ट सेल करेगा वो ML DL सेल नहीं करता किसी हालत में नहीं। AI, जितने भी आप स्पीच आप भी देखोगे किसी भी स्टेट्समैन की, वो आपको सारे यही बताते हैं AI बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। मशीन लर्निंग वर्निंग कहीं नहीं देखता, AI दिखेगा हर जगह आपको, क्योंकि वो फ्रंट एंडिंग AI होती है, बैक एंड में सारी ट्रांजेक्शन। जैसे MBA आप कर रहे हो, MBA डिग्री में आपका MBA है, बैक एंड में आप मार्केटिंग पढ़ रहे हो, HR पढ़ रहे हो, या जो भी आप स्पेशलाइजेशन है वो आपका इंटर्न, लेकिन डे एंड पे आपकी डिग्री MBA की है, उसके बाद में स्पेशलाइजेशन आप स्पेंड ऑन करते हैं। तो वो आपका केस यहाँ पे ज्यादा रहता है। अब जो आपकी जितने भी एप्लीकेशन, जैसे गूगल लेंस आपने सुना होगा, गूगल लेंस करके एक टूल अवेलेबल है, अगेन रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है गूगल का। वो क्या करता है कि इमेज प्रोसेसिंग करता है या वीडियो की प्रोसेसिंग करता है, कि सपोज मुझे एक इमेज में से आइडेंटिफाई करना है इमेज में वो पर्सन है या नहीं है, या कोई इमेज उस इमेज में उन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट है या नहीं है। जैसे रिसेंटली वी डिड वन एक्टिविटी फॉर इंडिया टीवी। इंडिया टीवी कहता है मेरे टीवी पे ऐड आती है, उस ऐड में मुझे चेक करना है कि मेरा एक यूजर, मेरा एक बिजनेस पार्टनर है, उसका लोगो दिखाना है, लोगो कितनी देर दिखा। तो मुझे क्या मिलता है, कहता है मैंने आपको वीडियो दे दी, पूरे दिन मेरी ये वीडियो चली थी, इन वीडियोस के अंदर में जो केसेस आ रही हैं, केसेस को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, वीडियो चलाने के बाद मैं करता हूँ उस लोगों को एज एन सर्च पैरामीटर देता हूँ। लोगो उस वीडियो में जितने भी फ्रेम बन रहे होंगे, सारे फ्रेम में उस लोगो को ढूंढ रहा है। उस लोगो के बाद हम कहते हैं ये लोगो 1 घंटे की वीडियो में जैसे 15 मिनट चला है, या 2 मिनट चला है, 3 मिनट चला, वो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इतनी सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स अभी बनी हुई है आपके पास। कैप्चरिंग है, कंपैरिजन है, इवन आपकी मैचिंग, आपका जो फेस आइडेंटिफिकेशन है, कई सारी आपके जो एग्जाम्स होते हैं उन सारे एग्जाम में बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस का प्रोविजन दे रखा है। कई जगह पे एयरपोर्ट्स पे इस समय फेस मैचिंग करी जा रही है, कि मतलब पर्सन सेम ही है जिसने बुक करा था, या पर्सन सेम ही है जो आधार पे है, या जब आधार वैलिडेट करते हो अगेन आपका थंब इंप्रेशन लेकर इमेज को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो पूरा इकोसिस्टम इमेज वॉइस वीडियो तीनों पे चल रहा है। कई केस में कई आपके पास इकोसिस्टम ऐसे जो अब लैपटॉप जो हाई प्राइस पर आ रहे हैं, अगेन मैं कह रहा हूँ जितने भी ये AI है आपको वैल्यूडेशन देती है रेवेन्यू टर्म्स में। जैसे एक लैपटॉप आपका बेसिक है, उसमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। दूसरा लैपटॉप है, इसमें जैसे आपने पासवर्ड, आप वॉइस ओवर पासवर्ड है, या आपके फेस से खुलेगा वो, या कुछ और भी आपने एडवांटेज दे दी, टेम्परेचर सेंसर दे दिया, कुछ और दे दिया, उससे क्या है कि प्रोडक्ट में वैलिडेशन देते हैं। तो ML उस प्रोडक्ट को जो एग्जिस्ट था उसको हम इनहेंस करते जा रहे हैं। जितना प्रोडक्ट इनहेंस होगा उसकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे मोबाइल आपके पास है, इस समय सारे मोबाइल स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। अलग बेसिक फोन और स्मार्टफोन का प्राइस में मेजर डिफरेंस है, 20 गुना महंगा है। जैसे 2000 स्टार्टिंग में 2 के आसपास में मोबाइल आता है, बेसिक मोबाइल आता था, नोकिया 1100 के आसपास का बेसिक, बिल्कुल जो इनिशियल डेज पे यूज करता मैंने, उसका प्राइस। और आज मैं कोई स्मार्टफोन उस कैपेसिटी में या उसी ब्रांड का कैरी करता हूँ तो काफी कॉस्टली है। तो क्योंकि वो यूजर कहता है मुझे बेसिक फोन की जो फीचर्स है स्मार्टफोन से उससे 20 गुना ज्यादा फीचर मिल रही है। एंड्रॉयड पे आपके पास काफी सारी हैंडी आ गया, आपका डेटा मिल रहा है, इंटरनेट मिल रहा है, व्हाट्सएप मिल रहा है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब कुछ मिल रहा है। तो यूजर कहता है चलो ठीक है, 5-6 हज़ार एक्स्ट्रा देके रेडी हूँ, आई नीड टू गेट द सर्विसेज। तो BI जो है, बिजनेस इंटेलिजेंस, हमेशा इस ML या AI को अपने रेवेन्यू को इनहेंस करने के लिए यूज करता है। अमेजोन के केस में आपके पास में जो इकोसिस्टम आपके पास है, अमेजोन जो रिकमेंडेशन इंजन आपको देता है उससे रेवेन्यू जनरेशन करता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे, इफ आई हैव दिस इंटरनेट विद मी, लेट्स से मैंने अमेजोन सर्च करा, इस अमेजोन पे लेट्स से मैंने लैपटॉप बाई करा, लैपटॉप सर्च करा, बाई कर रहा हूँ, सर्च कर लेते हैं। लेट्स से मैंने HP का लैपटॉप सर्च किया। अब यूजर कहता है इसका प्राइस जो मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा, 29,000। ठीक है, यूजर बाई करता है तो 29,000 का मुझे बिलिंग हो जाएगी। अब यूजर जो है आपके पास LSO AI इनेबल्ड हो, क्या करेगा, इस 20,000 29,000 के साथ तो कहेगा आप एक काम करो, मेरे से ये भी ले लो, वारंटी ले लो, या कुछ और सिस्टम ले लो, या इसके साथ में कुछ और लेना चाहिए, प्रिंटर भी ले लो, ये प्रिंटर भी ले लो, वो प्रिंटर भी ले लो, फलान ढिमकाना। तो उसने बिलिंग कितनी बना दी इसकी 64,000 रुपये बिलिंग बना दी इसकी। आप मानोगे नहीं, आप ये 10% यूजर ऐसे हैं अमेजोन पे जो इस रिकमेंडेशन को मान लेते हैं। ये ट्रेंड कहता है।
और ये रिड्यूस होते हुए 2% तक, जब हाई टिकट आइटम होते हैं तो 10% से रिड्यूस होकर 2% आ जाता है। लेकिन इन जनरल आप मोबाइल लेते हो तो मोबाइल का कवर ले लिया, मोबाइल का ग्लासेस ले लिया, मोबाइल पे कुछ आपका हेडफोन ले लिया, हैंड फ्री ले लिया, सारी चीज आपकी रिकमेंडेशन में आती है। अब यूजर ने क्या करा, जो पहले 30,000 रुपए की बिलिंग थी उड़ा के उसने आपको 62,000 या 64,000 की बिलिंग कर दी। तो इससे हुआ क्या, यूजर ने उसके माइंड में नहीं था प्रिंटर लेना, उसे माइंड में नहीं था मुझे बैकपैक चाहिए, उसके माइंड में नहीं कि मुझे मोबाइल से वायरलेस माउस चाहिए, मुझे बैग चाहिए, कीबोर्ड चाहिए अलग से। उसमें उसके माइंड में कभी नहीं था। आपने एज ए इसको प्रोडक्ट को अमेजोन ने क्या करा, अपने रिकमेंडेशन इंजन में कहा कि जो भी यूजर मेरे पास आता है मोस्टली ये बाई करता है। तो आपने कहा मोस्टली बाई करता है, पॉसिबिलिटी ठीक होगा ये। तो इसमें आपके पास 2 से 10% यूजर बाई कर लेते हैं इस एक्स्ट्रा प्राइस पॉइंट को। उससे हुआ क्या, एआई या एमएल की वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को, अमेजोन को 20-30 हजार का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, एक्स्ट्रा आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ। इस रेवेन्यू में कुछ प्रॉफिट है अमेजोन का, कुछ प्रॉफिट से पार्टनर्स का हुआ, लेकिन उसने बिना कुछ करे, बिना एक्स्ट्रा खर्च करे, उसने कस्टमर को कन्विंस कर लिया कि आप 30,000 का सामान और लो। तो मशीन लर्निंग और एआई जो सोल्यूशन आपके पास है वो कस्टमर के माइंड को रिकमेंडेशन इंजन के थ्रू से रिकमेंड करने की कोशिश करते हैं या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि यूजर ये भी ले सकता है। होता नहीं, आप मॉल में जाते हो लेने के लिए ए, लेके आते हो XYZ, तो वो क्या सराउंडिंग ऐसी होती है आपके पास में, जब ये सारी जो महंगी महंगी चीजें पहले फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाएंगी, उससे कम महंगी फिर ऊपर जाती है वो। उसे ट्रांजेक्शन का यूजर का ट्रैक्शन, यूजर जो आपके पास बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं मशीन लर्निंग में, उसके हिसाब से बिजनेस को हम देते हैं। बिजनेस इस मशीन लर्निंग बिहेवियर को स्टडी करके अपने सामान को रीफ्रेश करता है, रीपोजिशन करता है। आप किसी भी शॉप में चले जाना, किसी भी आपके मोबाइल शॉप या कहीं पे भी, जो इनिशियली जो फर्स्ट आपको सामान दिखेगा एक्सपेंसिव दिखेगा, किसी शॉप में ट्राई मारना। ये मशीन लर्निंग एआई का रूल, बीआई का रूल, बिजनेस इंटेलिजेंस का रूल है। जो भी चीज महंगी होगी फर्स्ट स्लैब में आएगी या शेल्फ में आएगी, उसके बाद में जो ज्यादा बिक्री होगी वो भी फर्स्ट स्लैब में, मतलब कस्टमर्स को फर्स्ट टाइम, मतलब जैसे अंदर जाएगा पहले उसी को देखेगा। जो जिसमें कम प्रॉफिट है, कम बिकती है, वो बिल्कुल कोने में रखेगा, वो कोई देखने वाला नहीं है। तो ये पूरा इकोसिस्टम आपका एमएल ड्राइव करता है, इमेज पोजीशन, वीडियो क्रिएशन, काफी सारी चीजें इसमें यूज होकर आप बिजनेस को मैनेज करते हैं। यूजर इसके लिए खर्चा करता है। अब मैं कहता हूँ ना आपको, सपोज मैं आपको एक जो एग्जाम आने वाला उसका क्वेश्चन पेपर देने के रेडी हूँ, चलो मैं, तो यूजर कहता है चलो क्वेश्चन पेपर मिला तो मैं पे भी दे देता हूँ। कई केस में जो जितने स्पैम होते हैं या इश्यूज होते हैं सारे इसीलिए होते हैं कि यूजर कहता है चलो यार मुझे रेडीमेड कल जो एग्जाम आना उसका पेपर मिल रहा है, इवन 2-1 लाख रुपए मांग रहा है, दे देते हैं। हमने कई केस देखोगे राजस्थान में या कई स्टेट्स में ऐसे केस आते हैं कि एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। रीजन ये नहीं है पेपर लीक करना है, रीजन ये है कि डिमांड उसकी है पेपर लीक करने की। तो ये यूजर हमेशा, ये इंडस्ट्री का टर्म रूल है, हम भी इस चीज को कस्टमर साथ अप्रेज करते हैं कि बस कस्टमर रेडी है पे करने के लिए, आपको चार्ज करना चाहिए। आप कस्टमर रेडी है पे करने के लिए तो कोई प्रोडक्ट एक्स प्राइस पे बिक सकता है। जैसे मैं कहूँ कि एक वॉच है, एक वॉच 100 रुपए से लेकर 10 लाख तक बिकती है, 100 रुपए से लेकर 10 लाख तक बिकती है। अब 10 लाख वाली वो वॉच जो है और 100 रुपए वाली वॉच में फीचर्स में डिफरेंस है, लेकिन डे एंड पे जो कोर इसकी फंक्शनलिटी है, टाइम दिखाना सेम है, लेकिन जो प्राइस पॉइंट है 10 लाख वाली वॉच है और जो 100 रुपए की वॉच है उसमें ड्रास्टिक डिफरेंस है। अब मैं लेट्स से 10 लाख वाली जो वॉच है उसका जितना भी खर्चा कर लो, उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसकी 1 लाख से ऊपर नहीं होगी मैक्सिमम, बोलो मैं सब कुछ जोड़ जाड़ के। जो 9 लाख का है वो सब गुडविल के लिए आप दे रहे हो उसको, या ब्रांड के लिए दे रहे हो उसको। तो कई चीजें आपके पास है जो बिजनेस स्टडी करता है मशीन लर्निंग या बिहेवियर से, ये परसेप्शन बिल्ड करता है। जो जरा ब्रांड है, ZERA ब्रांड है आपका, वो क्या करता है जानबूझ के ही अपनी क्रिएशन या प्रोडक्शन कम रखता है कि उसकी डिमांड ज्यादा रहे, यूजर को कम सामान मिले उसका। तो कई ब्रांड ऐसे हैं जैसे एप्पल है, एप्पल कहता है वो उसमें बेचना नहीं है जितना सैमसंग बेचता है। सैमसंग कहता है मैं एक साल में 10 लाख फोन बेच देता हूँ, एप्पल कहता है मुझे 10 लाख बेचना ही नहीं है, मुझे बेचना सिर्फ 1 लाख ही है, लेकिन प्राइस मेरा हाईएस्ट होगा। तो यूजर कहता है जो चीज स्कैसिटी में है, जो कम मिलती है, यूजर का परसेप्शन उस पर ज्यादा अच्छा लगता है कि ये चीज अच्छी है इसलिए कम मिल रही है। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम दे रहे हैं, इमेज वीडियो ये सारा कुछ इसी काम के लिए। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट केस है इसमें, कहता है ये जो बिजनेस इंटेलिजेंस में सबसे पहला इशू आता है। सपोज आप यू आर ज्वाइन विद द बैंक, आपने जैसे आईसीआईसीआई बैंक में ज्वाइन किया, आप यू आर हेडिंग दस क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट, और आप बैंक सेक्टर में अकाउंट देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। अब ये जो मेजर इशू आता है फ्रॉड का, होता है क्या कि फ्रॉड बिजनेस को नेगेटिवली हिट करता है, काफी लॉस हो जाता है बिजनेस को। सपोज आपने एक कस्टमर को लोन दे दिया, एक बैंक ने, XYZ बैंक ने,
उसको वैलिडेट नहीं करा, उसको चेक नहीं करा कि दे पाएगा वापस, दे पाया नहीं दे पाएगा, तो उसने कहा ठीक है, आपने बिना किसी वेरिफिकेशन दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, पैसा लेके वो चला गया। अब हुआ क्या, जो जिसने लोन दिया था और जिस ऑर्गेनाइजेशन लोन दिया था, दोनों के लिए लॉस हो गया, वो लोन रिकवर नहीं होता। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स बिजनेस को हेल्प करती है बिजनेस इंटेलिजेंस के थ्रू, कि पर्सन की स्क्रूटनिंग करो, XYZ ये फॉर्म है मेरी, या ये चेकलिस्ट है, इन चेकलिस्ट को फॉलो करो, उससे क्या है, आपका लॉस कम होगा। यही रीजन आपके पास लास्ट 5 साल में, 5 या 9 साल में आपके पास, यू हर्ड अबाउट NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंक में होती है। इन पे जो लोन पे नहीं होता, उसको बैड डेट्स या राइट ऑफ करना पड़ता है बैंक को। वो जो क्वांटिटी है राइट ऑफ की, रिड्यूस होते होते काफी कम होगी। पहले आपका अराउंड 5% के आसपास थी, अब रिड्यूस होगी 2.1 के आसपास में। ये है टोटल लोन पेमेंट्स का, पेबल्स का। तो ये फ्रॉड डिटेक्शन जो इकोसिस्टम है आपका, मशीन लर्निंग के थ्रू ये बनता। सबसे पहले जो इकोसिस्टम ये यूज किया था, SDFC बैंक ने यूज किया था। SDFC बैंक आपका लीडिंग बैंक है इंडिया का, जो लोन सबसे ज्यादा देता है, या सबसे ज्यादा कॉल आपके पास आएगी इनकेस आप वर्किंग हो, तो वहां पे यूजर्स को चेक करता है, जो डेटा मेरे पास आ रहा है उसके अंदर में मेरे पास जो यूजर है, लेट मी स्टार्ट, यस। तो चेकलिस्ट करता है, प्रीवियसली मेरे पास जो फ्रॉड हुआ था XYZ रीजन के हुआ था, तो यूजर मशीन लर्निंग यूज करता है। मशीन लर्निंग कहती है आप लास्ट टाइम यूजर इसने ये किया था, तो नेक्स्ट टाइम आप उसको इकोसिस्टम फैले करो। तो मेरे को बीच में मशीन लर्निंग डालने से मुझे क्या है, मुझे एस्टिमेशन मिल जाएगा पहले उसका, कि वो फ्रॉड हो सकता है नहीं हो सकता। हो सकेगा तो मेरे को पहले डिटेक्शन मिलेगी, बस नहीं देना तो नहीं देना। उससे क्या होगी, एक जो पॉसिबल लॉस है, पॉसिबल लॉस यूजर का, वो रिड्यूस हो जाता है। आप सपोज आप कोई मूवी देखने जा रहे हो, मूवी देखते वक्त पहले क्या करते हो, रिव्यूज देखते हो उसके मोस्ट ऑफ द केस में यूजर्स रिव्यू देखते हैं। रिव्यू ठीक है तो आप मूवी देखने जाते हो। उससे क्या होता है कि इनकेस मूवी ठीक है तो ठीक है, गुड टू गो है। इनकेस मूवी खराब है, बोर होने वाली बात है, तो आप नहीं जाते हो। उससे क्या होता है, जो रिव्यूज हैं आपके, एक परसेप्शन बिल्डअप कर देते हैं, जो ठीक है जा सकते हैं इसके लिए। तो वो केस फ्रॉड डिटेक्शन वाला ही करता है, कि अगर मेरे पास डेटा जो आएगा, प्रीवियसली स्टोरी डेटा मेरे पास है, क्योंकि 10-15 साल से SDFC लोन देख रहा था। उसने कहा प्रीवियसली मेरे पास ये डेटा है, इतने फ्रॉड हुए थे, फ्रॉड का रीजन ये था, ये इकोसिस्टम का 60 डेटा पॉइंट हमारे पास होता है। उसको हम स्टडी करके बिजनेस को एक एल्गोरिथम बना के दे देते हैं, फंक्शनलिटी। उसमें आप यूजर को बोलते हैं कि आप 5 वैल्यू दे दो यूजर की, कस्टमर की, उसके बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एलिजिबल है या नहीं। जैसे आप जॉब के लिए कहीं जाते हो, जॉब के लिए वो चेकलिस्ट देता है ना, ये होना चाहिए। उसके बाद में HR हायर करता है, इंटरव्यू को स्टार्ट करता है। तो वही आपका बैंकिंग सेक्टर क्या करता है, मशीन लर्निंग ने उनको रिकमेंडेशन दे दी कि ये चीज, जैसे एज उसकी X होनी चाहिए, सैलरी ब्रैकेट Y होना चाहिए, लोकेशन ये होनी चाहिए, प्रीवियसली उसका कोई लोन नहीं चलना चाहिए, या वर्किंग उसका एम्प्लॉयमेंट क्या है, वो सारा कुछ देके उसको प्रोसेस करते हैं। तो BI जो है, बिजनेस इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को यूटिलाइज करके अपने लॉसेस को रिड्यूस करता है। स्पीच रिकग्निशन सिस्टम आपके पास है, जैसे मैंने गूगल असिस्टेंट आपको दिया। अगेन ये इकोसिस्टम आपका रेवेन्यू मॉडल फॉर्मेट में इस समय अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द यूजर्स इस समय जितने भी यूट्यूब देखते हैं या यूट्यूब सर्च करते हैं, आप सिर्फ 10% यूजर टाइप करते हैं सर्च करने के लिए, सिर्फ 10%। आज के टाइम में ये है, यूजर क्या करते हैं, उसका माइक ऑन करते हैं, बोलते हैं, वीडियो को टेक्स्ट, मतलब ये जो आपने बोला है टेक्स्ट बना के सर्च मार देता है गूगल। तो इस समय क्या, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हुई। पहले क्या था, ये सर्च बाय वॉइस नहीं था इनिशियल डेज में, तो यूजर को टाइप ही करना पड़ता। तो स्पेलिंग टाइप हो जाती, तो फिर तो उसको सर्च करना मुश्किल हो जाता है। फिर उसने पहले क्या करा, उसने इंग्लिश को ठीक करा गूगल ने अपनी, कि आपने जो भी गलती करी है इंग्लिश की, पहले ठीक करता हूँ उसको। उसके बाद उसने वॉइस टू टेक्स्ट करने करा, उस टेक्स्ट को उठा के उसने इंग्लिश कन्वर्ट करा, इंग्लिश में ग्रामर ठीक करी, उसके बाद सर्च करता है वो। तो जिस प्रोडक्ट में जितनी ज्यादा इनेबलमेंट है, AI इनेबलमेंट है, उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग उतनी ज्यादा हाई रहती है। जैसे आपका केस बनता है, उस हिसाब से कॉल ले सकते हैं आप। अनोमली डिटेक्शन आपके पास है किसी भी चीज में, मतलब इस समय जो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं 10 डोमेन है आपके पास में, जिसमें ये काम 10 से ज्यादा, हर डोमेन में आपके अनोमलिटी मिलती है। अब कोई चीज आप रेगुलर कर रहे हो, सडनली आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दी, तो घर वाले पूछते हैं क्या हुआ, आज बारिश आएगी क्या? तो वो केस आपके पास है। अनोमलिटी मींस एनीथिंग विच इज अदर देन द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। जैसे कोई पर्सन डेली एक्स परचेज कर रहा है, सडनली उसने X2 परचेज करना स्टार्ट कर दिया, तो बैंक भी एक बार कॉल करके पूछता है वो सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है, या फ्रॉड होने के चांसेस क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा हो जाते हैं, जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें। तो अनॉर्मलिटीज एक बेटर ऑप्शन है चीजों को से चेक करने का, कि मेरे पास जो बिहेवियर है मेरा एंड यूजर का, वो ठीक है यानी। मशीन का भी आपका पॉसिबिलिटी, जैसे मोबाइल की बैटरी लेट्स से एक दिन चलती है, मतलब आपने कहा कि 24 आवर चलती है, अब सडनली बैटरी 1 घंटे में डेड होनी स्टार्ट होगी, वो क्या है, अनॉर्मलिटी है। अब 1 घंटे में बैटरी डेड होने लगी तो क्या करते हो आप, उसको मैकेनिक के पास लेके जाते हो, बहुत कुछ इशू है, बैटरी में काम नहीं कर रही है। अब ये जो स्ट्रेच मतलब सडनली वो जो 24 आवर्स का बैकअप था 1 घंटे का हो गया,
तो वो किसी ना किसी रीजन से हुआ, या तो हीटअप हो रहा है या वो बैटरी की लाइफ खत्म हो गई है। तो ये जो चेंज है, जो डेल्टा चेंज हुआ है या वेरिएशन आया है, इस वेरिएशन को हम एनॉमलिटी कह रहे हैं। तो हर सेगमेंट में एनॉमलिटी आती है, हर सेगमेंट में इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं चीजों के साथ में। रिटेल डोमेन के केस में जितने भी आप एमबीए रिटेल का कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके पास हर एक स्टेज पे, हर एक स्टेज बोल रहा हूँ मैं, हर एक स्टेज मतलब रिटेल में काफी स्टेज होती है, हर एक स्टेज में आपके पास मशीन लर्निंग एआई को बिजनेस यूज करता है अपनी लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए, प्रॉफिट को एनहांस करने के लिए। बिजनेस में दो ही फंडे है, प्लस एंड माइनस। हर बिजनेस चाहता है प्रॉफिट प्लस में हो, कॉस्ट माइनस में हो, ये फंडा है पूरी इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री इसी फंडे को यूज करती है आपके पास कि मेरे पास प्रॉफिट प्लस में है, कॉस्ट नेगेटिव होनी चाहिए, रिड्यूस होनी चाहिए, जो भी केस है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट को यूज करके जितने भी सब डोमेन्स है, सब हायरार्कीज है, उनको प्रोसेस कर रहे हैं चीजों के साथ में। फाइनेंस डिपार्टमेंट के केस में, फाइनेंस जो आपके पास डोमेन है उसके केस में सारी चीजें मोस्ट ऑफ द केस अवेलेबल है। अदर केसेस में यू नेम, कार की है, ऑटोमोबाइल है, सारी चीज आपकी सारी आ रही है। अब मशीन लर्निंग के केस पे थोड़ा सा लेते हैं, इससे पहले किसी को क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, आई कैन टेक अप दैट, बिकॉज अब हम हैंड्स ऑन पे जाने वाले हैं इसके बाद। किसी की क्वेरी यहाँ तक, किसी को पूछना हो? You can unmute, you can type, or you can raise your hand. We can help you. जो प्राइमरी डोमेन आपके पास है चीजों का, यू हैव टू रिलेट द थिंग्स, बिकॉज जो प्लेसमेंट आपको आगे लेनी है, जो आपके पास ट्रांजेक्शन फ्यूचर में आएंगे, तो सारे सारे आपके बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट दोज हैड कम्युनिकेटेड आर एमबीए। एमबीए केस में आपके पास जितना भी आपके पास फ्यूचर में आपको जो कोई जॉब मिलती है मैनेजर ट्रांजेक्शन पे, वो जॉब की डिमांड यही रहेगी कि आप बिजनेस को एक बेटर नंबर्स करके दो। वो नंबर सेल्स में हो सकते हैं, वो नंबर मैन्युफैक्चरिंग में हो सकते हैं, वो मैनेजमेंट हो सकते हैं, ऑपरेशन में हो सकते हैं। नंबर बेस्ड सिस्टम है, तो आपका मशीन लर्निंग इकोसिस्टम आपको हेल्प कर सकता है उस इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए, बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। चलिए तो करिए, तो अब स्टार्ट करते हैं उसको आगे। नेक्स्ट आपके पास डेटा गैदरिंग का केस आता है। जब मशीन लर्निंग का स्टेजेस है, 6 स्टेज में मशीन लर्निंग काम कर रही है। डेटा गैदरिंग आपके पास है, डेटा कहीं से भी ड्राइव हो सकता है, इट कुड बी फ्रॉम योर मोबाइल ऑल्सो, या वो किसी एप्लीकेशन से आ रहा है, जैसे कोई किसी कंपनी का ईआरपी है वहां से आ गया, या कंपनी का कोई मीडिया, न्यूज मीडिया से उठा लिया आपने, न्यूज से उठा लिया, वो डेटा कहीं से भी आ सकता है, वेरियस सोर्सेज से। उस डेटा को हम क्लीन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उसकी रैंगलिंग करते हैं। रैंगलिंग मतलब कि उसको अपने हिसाब से, बिजनेस हिसाब से उसको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो करना होता है उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। एनालिटिक्स करके इस पर मॉडलिंग ट्रेनिंग होती है, देन डिप्लॉयमेंट आती है उसकी। तो यहाँ पे जो मॉडलिंग ट्रेनिंग है, ये आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को हम क्रिएट कर रहे हैं। डेटा पॉइंट्स जितनी भी आपकी एल्गोरिथम्स होती है, वो आपके पास इसी डोमेन के कॉन्टेक्स्ट में आती है। तो पहला केस आपका एनालिटिक्स होगा, उसके बाद में आपके पास मॉडल ट्रेनिंग आती है। ये दो क्रिटिकल फेजेस हैं जिन फेज में मशीन लर्निंग अपने बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए इक्वेशन जनरेट कर रही है। तो कोई भी डेटा सेट जो आपके पास आएगा, वो इन दो डोमेन के अंदर ही मेजोरिटी केस में आपको मिलेगा काम करने के लिए। तो जो आर्किटेक्चर आपका मशीन लर्निंग का है, उसमें दो सब हेडिंग्स हैं जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पहला जो डोमेन आपके पास है, वी कॉल देम सुपरवाइज लर्निंग। जो पहला डोमेन आपके पास है जिस पर हम काम कर रहे हैं, दैट्स सुपरवाइज लर्निंग। इसमें केस क्या है कि आपके पास हिस्टोरिक डेटा अवेलेबल है आपके साथ, जो प्रीवियसली डेटा अवेलेबल था उसके बेस पे आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि आपको कॉलेज में आपको सेशन हुआ, सेशन के बाद आपका एग्जाम हुआ, जो एग्जाम आपके पास है वो उसी का हुआ जो अपने टॉपिक कवर कर रहा है। अगर ऐसा केस होता तो ये सुपरवाइज लर्निंग है। तो मशीन लर्निंग भी अगर थी, जो आपके पास प्रीवियसली हिस्टोरिक डेटा अवेलेबल है, जैसे कि इसमें सपोज आपको क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर भी बताया गया प्रोफेसर ने आपको, तो ये क्या है, जो क्वेश्चन पूछा गया वो इनपुट फैक्टर है, जो आंसर बताएगा आउटपुट फैक्टर है। तो मशीन लर्निंग दोनों फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करती है अपने इन्वायरमेंट के अंदर में, और जितने क्वेश्चन है उनके रिस्पेक्टिव आंसर को स्टडी करती है। जितने ज्यादा क्वेश्चन आंसर होंगे, उतना अच्छी मशीन लर्निंग ट्रेन होता है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या, चीजों को हम स्ट्रीमलाइन करके कैरी ऑन करते हैं। अनसुपरवाइज केस में क्या है कि आपके क्वेश्चन को आंसर नहीं है। आपने कहा सपोज हमने कुछ नया पढ़ना स्टार्ट किया, बुक पढ़ी बाहर से कहीं से, और बुक में कई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है। तो हुआ कि आपके पास डेटा में आपका इनपुट है, आउटपुट नहीं है, मतलब प्रीवियसली डेटा पॉइंट आपके पास, लेकिन उनका प्रीवियस आंसर क्या था, किसने कुछ दिया था नहीं दिया, तो पता नहीं आपको।
और कोई ऐसा केस है कि आपका सब डेटा है, क्वेश्चन आंसर नहीं है सपोज, उस केस की लर्निंग को हम अनसुपरवाइज लर्निंग करते हैं। जैसे कि कोविड के टाइम पे 2019 में कोविड वैक्सीन नहीं थी, हमें सिम्टम पता है सब कुछ, बुखार है, खांसी है, फलाना ढिमकाना सब कुछ है, लेकिन उसकी मेडिसिन नहीं पता। जबकि सुपरवाइज वाला केस क्या है, सपोज क्रोसिन है बुखार के केस में, पता है आपको पहले से बुखार होगा तो क्रोसिन लेनी है, ये सुपरवाइज लर्निंग है आपके पास में, कि प्रीवियसली डेटा पता है कि बुखार के केस में क्रोसिन है, तो फ्यूचर में कोई यूजर बोलता है मुझे बुखार है क्या चाहिए, आपने बोल दिया क्रोसिन चाहिए। अनसुपरवाइज केस में क्या, डेटा आपको सिम्टम्स पता है, इनपुट्स है लेकिन आउटपुट पता नहीं है। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज करके उन सिम्टम्स के बेस पे हम कुछ मेडिसिन में परम्यूटेशन कम्बिनेशन ट्राई करके एक प्रपोज मेडिसिन दे सकते हैं। जो अभी जो मेडिसिन जितनी बनी है वो सारी एमएल बेस्ड मशीन, मतलब एल्गोरिथम बेस्ड बनी है। उन्होंने क्या किया, आपके अलग सिम्टम्स को रीड करा कि सिम्टम में ये मेडिसिन अच्छा काम करती है, उसमें ये काम करती है, और डीएनए वीएनए चेक करके मेडिकल फर्टेनिटी ने काफी सारे यूजफुल सिस्टम स्टडी किया, उसके बाद उन्होंने प्रपोज किया कि बस ये मेडिसिन हो सकती है। उस मेडिसिन को फिर उन्होंने सैंपल करा, उस मेडिसिन को टेस्ट करा जैसे 100 यूजर्स पे, उस पे चेक करा 100 में से जैसे 80 ठीक हो गए, 20 रह गए, 20 जो रहेगी उनको चेक करा कि क्यों रह गए, मतलब क्यों ठीक नहीं हुआ। उसमें एरर पता लगी कि ये सिम्टम ये ठीक नहीं हुआ, जैसे खांसी ठीक हुई बुखार ठीक नहीं हुआ। तो उसने जो मेडिसिन थी उसको दोबारा रिविजिट किया उन्होंने, दोबारा उसमें कुछ चेंजेस करे, फिर नई मेडिसिन लेके आए। तो उसमें क्या चेंजेस चलते रहते हैं ट्रांजेक्शन में, तो उसको हम री इन्फोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग आपके पास है, इनकेस आपका इनपुट आउटपुट दोनों अवेलेबल है। अनसुपरवाइज जिसमें आपके पास में इनपुट है आउटपुट नहीं है, क्वेश्चन आंसर नहीं है। इन्फोर्समेंट क्या है, जो प्रीवियसली एरर आई थी एल्गोरिदम्स में कोई भी सुपरवाइज अनसुपरवाइज, उसको हम ठीक करते हुए चल रहे हैं। तो ये 3 टाइप की एल्गोरिदम्स टाइप है जिसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं यूजर को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, सोल्यूशन देने के बिजनेस को। ये स्क्रीन पे आपके पास एक गूगल सिस्टम है जो आप आगे यूज करेंगे। सुपरवाइज लर्निंग में केस दे रखा है कि सपोज मेरे पास कुछ कैट की इमेजेस आपके पास दे रखी है अपने लेफ्ट हैंड साइड में। इस कैट इमेजेस को मैंने क्या करा, रीड करा, अपनी मशीन लर्निंग को पास कर दिया। मशीन लर्निंग का ठीक है, मुझे आप जो भी आप इमेजेस दे रहे हो उस इमेजेस को मैं लेबल के साथ रीड कर रहा हूँ। आपने कैट की दी, डॉग की दी, जो भी आपके पास दे दिया, उसके बाद उसने क्या करा, जब उसको फ्यूचर में यूज करने कहते हो, आपने कहा ये एल्गोरिथम बनाई उसको यूज करना है मुझे, तो यूज करते हो तो हमने क्या किया, कुछ इनपुट दिया उसको। उस इनपुट पे क्या है, जो प्रीवियसली डेटा उसके पास आया था उस डेटा के साथ उसने मैच करना स्टार्ट किया, कि जो प्रीवियस डेटा था उसके बेस पे मैंने बिहेवियर जो स्टडी किया था अपना कैट और डॉग में डिफरेंशिएशन करने के लिए, कैट को उसने आइडेंटिफाई किया कैट मेरा ये है, डॉग ये है। तो मशीन लर्निंग में सिंपल 5 साल के बच्चा या 10 साल के बच्चे के आसपास जो उनका बिहेव आईक्यू में आईक्यू होता है उस हिसाब से ट्रेन कर सकती है अपने आप को। जैसे आप इनिशियली जब बचपन में जब अल्फाबेट्स पढ़ रहे थे, एबीसी पढ़ रहे थे, तो एबीसी अलग अलग ढंग से लिख रहे थे आप, लेकिन जो अल्फाबेट जो वर्ड्स आप अभी सुन रहे हैं, ये वर्ड होता कभी आपने पढ़े ही नहीं हो। जैसे सुपरवाइज मशीन लर्निंग वर्क्स है, रिफाइनमेंट है, या कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिले जो आप इससे पहले वोकैबुलरी में कहीं नहीं थे, लेकिन फिर भी आपका माइंड उसको रिलेट कर पाता है किसी किसी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू कि इसका मीनिंग वो था, पॉसिबल इसका मीनिंग ये हो। तो जैसे माइंड आपका रिलेट करता है, लर्न करता है चीजों को, वैसे मशीन लर्निंग प्रीवियसली डेटा जो मिला उस हिसाब से लर्न करके अपने बिहेवियर को मैनेज करती है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मशीन लर्निंग का ये है कि आपके पास फ्यूचर जो प्रीवियस डेटा पॉइंट्स है उनके लेबल्स को हम चेक करके आउटकम के अंदर कन्वर्ट कर पाए, ताकि फ्यूचर में जब मेरे पास कोई क्वेश्चन के लिए आता है यूजर, तो मैं उसको आंसर दे पाऊँ कि मेरा डेटा, आप यूजर मुझे देता है इमेज दे दी, उसने बताओ कि कैट है या नॉन कैट है, तो ये मेरी एल्गोरिदम उसको क्लासिफाई कर पाई कैट है या नॉन कैट है। तो इसकी एल्गोरिदम्स के टाइप, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दे रखे। क्लासिफिंग केस में आपके पास सीधा फंडा ध्यान रखना, क्लासिफिंग होता है जब आप किसी को क्वालिटेटिव आउटकम दे रहे हो। क्वालिटी मतलब पास फेल, अच्छा बुरा, ये इसका क्वालिटेटिव आउटकम्स है। और रिग्रेशन क्या है, जब आप क्वांटिफाई कर रहे हो उसको, मतलब अमाउंट में आउटकम दे रहे हो। जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्शन कितनी होगी, एक्स अमाउंट होगी, x.3 होगी, x.5 जो भी होगी, वो रिग्रेशन के। कोई एल्गोरिदम क्लासिफिकेशन बेस है, इट मींस वो आउटकम क्वालिटेटिव फॉर्मेट में देगी, यस नो पास फेल अच्छा बुरा, ऐसा कोई केस है तो क्लासिफिकेशन केस आएगा आउटपुट के लिए। इनकेस नंबर बेस्ड आउटकम आ रहे हैं तो रिग्रेशन केस आएगा। सिंपल क्लासिफाइड एल्गोरिदम से। अनसुपरवाइजर केस जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि इसमें क्या है कि आपके पास डेटा आउटपुट का नहीं है, आप सब इनपुट डेटा है, उस डेटा की बेस पे क्या है पैटर्न डिसाइड करने की कोशिश करता है कि इस डेटा में से कुछ पैटर्न निकाल पाए हम। जैसे मैंने कहा कि आपके पास आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, उसको रिलेट करने की कोशिश करते हो कि मेरे पास प्रीवियसली मैंने चैप्टर पढ़ा था उसमें ये टॉपिक आए थे, इसमें जो टॉपिक आई वो उससे रिलेटेड है या नहीं है। तो इसमें अनसुपरवाइज में क्या कि हम डेटा को पैटर्न वाइज या ग्रुप वाइज या क्लस्टर वाइज स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे डेटा पॉइंट्स आएगा उस डेटा को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लेट्स से मैं एक व्हाइट बोर्ड लेता हूँ जिसके लिए
जैसे यहाँ पे जो केस आपके पास आता है अनसुपरवाइज केस में, लेट्स से मेरे पास डेटा पॉइंट्स है आपके पास। लेट्स से मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्लोप सीधा कर लेता हूँ उसको। लेट्स मेरे पास एक्सेस सेल्स है और या प्रॉफिट है। मैंने कहा लेट्स से सपोज यहाँ पे कुछ डेटा सेट है मेरे पास, कस्टमर, कुछ कस्टमर यहाँ पे है, 4 कस्टमर मेरे पास है, उनका सेल्स एंड प्रॉफिट का सेगमेंटेशन लेकर। अभी यूजर क्या कहता है, अनसुपरवाइज वाला केस कहता है कि मेरे पास क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं है कि ये 6 कस्टमर बुरे कस्टमर है, तो मैं क्या करता हूँ उनको ग्रुप करता हूँ। पहले मैंने कहा इसको एक ग्रुप बना दिया, लेट्स से नाम दे दिया ए, इसको ग्रुप बना दिया मैंने, नाम दे दिया बी। अब बिजनेस इसको टैग कर सकता है कि ये कस्टमर क्या है, ये हाई प्रॉफिट दे रहे हैं मुझे, हाई सेल दे रहे हैं। बिजनेस इसको रीड करेगा अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। मशीन लर्निंग आपको 0-1 देती है, बिजनेस उसको 0-1 को अच्छा बुरा पास फेल जो भी आपका ग्रुपिंग फीचर में करता है। अनसुपरवाइज ग्रुप नहीं करती है, अनसुपरवाइज क्लस्टर करके आपको ट्रांजिशन करके देती है, बिजनेस को नेम करता है। जैसे ये कस्टमर जो आपके पास ए ग्रुप वाले हैं, ये तो प्रॉफिट भी कम दे रहे हैं मुझे, सेल भी कम कर रहे हैं। तो जो बिजनेस इंटेलिजेंस पर्सन है या बिजनेस है, इस मशीन लर्निंग को कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए यूज कर सकता है। जैसे अमेजोन आपके पास, अमेजोन से कुछ आप बाई करते हो कोई प्रोडक्ट, आप सपोज अमेजोन से जो प्रोडक्ट बाई करा वो लेस से 1000 के लेस देन में आ रहा है प्राइस में। तो अमेजोन क्या करता है कि जो आपको ऐड आएंगी प्रोडक्ट की या प्रोडक्ट का कम्युनिकेशन आएगा, वो आप सारी आपको 1000 के नीचे का ही आएगा। 1000 के ऊपर का कम्युनिकेशन अमेजोन आपको भेजेगा नहीं, क्योंकि मालूम है कि जो आपकी बाइंग कैपेसिटी है या जो आपने लास्ट बाई करा था, जो आपका बाइंग का इंटरेस्ट है या प्रोडक्ट की रेंज आपकी जो बाई करते हो आप 1000 के अंदर अंदर की है। तो आपको जो ऐड आएगी, जो रिकमेंडेशन आएंगे, जो आपकी पोस्ट आएगी या नोटिफिकेशन आएंगे, न्यूज लेटर्स आएंगे, सारे उसी प्राइस बैंड में आएंगे। तो उससे होता है क्या, बिजनेस अपने कस्टमर की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिसाइड कर पाता है। ये कस्टमर जो मेरे पास है, ये लेट्स से ये कस्टमर मुझे हाई प्राइस पे बाय करने को रेडी है और मुझे हाई प्रॉफिट देता है, तो उसको मैं लेट्स से कोई प्रोडक्ट मेरे पास जो जिस लेट्स से एक्स अमाउंट से ऊपर का है उसको मैं दे दूंगा। इस कस्टमर के लिए मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसकी जो, क्योंकि उसका सेलिंग पैटर्न थोड़ा सा लिमिटेड है, अमाउंट का मैं उसके पास प्रॉफिट भी कम दे रहा मुझे, तो इस कस्टमर के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी मेरी अलग होगी। तो बीआई जो बिजनेस इंटेलिजेंस है, एमएल को यूज करके कस्टमर बिहेवियर की कॉन्टेक्स्ट में मार्केटिंग करता है। ऐसा नहीं होता हर एक बंदे को हर एक बंदे को सेम मेल देते हैं। ये एमबीए का फर्स्ट चैप्टर है जो कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर बिहेवियर स्टडी आप करते हो। कस्टमर सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट है बिजनेस को स्टडी करने के लिए। आपका कस्टमर सेगमेंटेशन ठीक नहीं है, तो जो आपकी मेल जा रही है, टारगेटेड ऑडियंस ठीक नहीं है, तो मेल का जो आपका एडवांटेज नहीं मिलेगा आपको। सबको मेल भेजने से कुछ बेनिफिट नहीं आता। मतलब इंडिया में सारे यूजर्स, सबको मैं कहूँ कि आप लेट्स से सारे एप्पल बाय कर लो, एप्पल भेजता नहीं कभी भी। या मैं कोई एचडीएफसी बैंक आपको मेल भेज रहा है, चलो आप क्रेडिट कार्ड ले लो मेरा, एचडीएफसी बैंक भी ऐसा नहीं करता। वो कहता है पहले आप डेटा लेता है बैंक से, कहाँ से भी डेटा लेता है, उस डेटा को फिल्टर करता है पहले। कहता है मेरी क्रेडिट कार्ड के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जैसे उसके एटलीस्ट 4 लाख का पैकेज हो, मिनिमम लेते हैं चलो। उसका एज एक्स होना चाहिए, लोकेशन वाई होनी चाहिए, सपोज एक्स वाई जी फैक्टर्स के बेस पे वो मेल या कॉल आपको आती है। क्योंकि जो भी आपकी ऑफबोर्डिंग टीम है जो कॉल करती है, और वो क्या करती है, आपके पास कॉलिंग सबको नहीं होती, वो फिल्टर डेटा कॉल होती है, ताकि मेरे पास जो कॉलिंग का जो एफर्ट आ रहा है, कॉस्ट आ रही है, जो मैन पावर में लगा रहा हूँ, उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट है। ऐसा नहीं मैं नर्सरी से लेकर 12th तक के सब बच्चों को कॉल कर रहा हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो, नहीं बिकेंगे, लॉजिकली ठीक नहीं है। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी जब ये बनती है, मशीन लर्निंग के इकोसिस्टम को कंटेन करके ही बनती है कि मेरा कस्टमर सेगमेंटेशन पहले हो जाए, उसके बाद में मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा ताकि मेरी कॉस्ट मिनिमाइज हो। तो वो केस आपका यहाँ पे कैरी कर रहा है अनसुपरवाइज्ड केस में। पहले सेगमेंटेशन बनता है, उसके बाद में उसको यूज किया जाता है। इस वाले केस में क्या है, सेगमेंटेशन पहले से बना हुआ है, मालूम तो आपको पता है कि लेट्स से मेरे पास कस्टमर का सेगमेंटेशन पहले से कर रखा है मैंने। लेट्स से ये फर्स्ट मतलब ये एमबीए है, बीबीए है, ये बीसीए, ये टारगेटेड ऑलरेडी पहले से बने हुए, तो ये सुपरवाइज केस है। लेकिन कोई आपके पास जनरल ऑडियंस मेरे पास आ जाती है, सर मुझे वेबिनार करनी है, तो वेबिनार का टॉपिक डिसाइड करने से पहले मैं उसको पूछता हूँ सबका बैकग्राउंड क्या है, क्या करोगे, कैसे करोगे, तो उस हिसाब से वे अनसुपरवाइज केस होता है, ताकि वो टारगेट पहले से डिसाइड नहीं है, मुझे टारगेटिंग करनी पड़ेगी, तो ये केस अनसुपरवाइजर का केस में आता है। तो बिजनेस इंटेलिजेंस वाला केस एमबीए वालों के लिए थोड़ा सा बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में ये सारा है। ये कहता है मेरे पास जो फर्स्ट स्टेज आपका बिजनेस इंटेलिजेंस का क्या है, पहला और आखिरी स्टेज क्या है, मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है और कॉस्ट कम करनी है। सिंपल रूल ध्यान रखना लाइफ का, दोज हु आर इन एमबीए, बिजनेस तो दो ही डोमेन पे काम करता है, या तो प्रॉफिट बढ़े या कॉस्ट कम हो। जितने भी बिजनेस उठा लो, कोई भी कंपनी उठा लो, रिलायंस उठा लो, रिलायंस का जो आपका जो बिजनेस इंटेलिजेंस है, अभी उसकी एजीएम होने वाली है लगसे 1-2 दिन में शायद, उसमें कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट ले लेते हैं। जैसे जियो लास्ट टाइम उनका था, जियो मार्ट लॉन्च किया था लास्ट वाले एजीएम में उन्होंने।
उससे पहले उन्होंने जियो लॉन्च किया था, उससे पहले कुछ और किया था। उस बिजनेस इंटेलिजेंस का कि कोई ना कोई ऐसी ट्रांजिशन आपको करनी है जो आपके रेवेन्यू को कैरी करें। तो उसके लिए क्या करते हैं, स्टेज डिसीजन उसके कहता है। बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए सबसे पहले मुझे डेटा को कैरी करना है। कहाँ से करना है, वो मुझे कहीं से भी आ सकता है। मैं कंप्यूटर का डेटा ले सकता हूँ। जैसे सपोज करा आप में से कोई यूजर कहता है सर मुझे अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है अपने एरिया में। तो स्टार्टअप के लिए आप कहते हो सर मेरा मेरा प्लान है कि मैं एक मोबाइल शॉप खोलूँ एप्पल की या निश प्रोडक्ट की, लेट्स से। तो उससे पहले आप क्या करते हो कि उसको स्टडी करते हो कि इन इस कॉस्ट इस ट्रांजिशन में इस मार्केट में कितने कंपटीटर्स हैं, और है तो, और नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या ये कस्टमर बेस है यहाँ पे, नहीं है। एक्चुअल में कस्टमर बेस है लेकिन कंपटीटर्स नहीं है तो गुड है आपके लिए, वेल एंड गुड है। इनकेस कंपटीशन नहीं है, कस्टमर बेस भी नहीं है, तो फिर फायदा नहीं है वहाँ पे स्टार्टअप देने का। उस चीज़ के लिए कुछ और बिजनेस मॉडल देना पड़ता है। जब भी आप किसी भी स्टार्टअप एक्टिविटी में जाते हो या कुछ भी इंक्यूबेशन के लिए जाते हो स्टार्टअप्स के, तो वहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका डेटा, आपका माइनिंग करी जाती है डेटा, आप कैसे आप प्लान कर रहे हो बिजनेस को रिफ्रेश करने का। उसके बाद जो डेटा आपके पास, उसको नेक्स्ट फेज में लेके जाते हैं, एनालाइज करते हैं कि जो आप आपने डेटा कलेक्ट कर रहा है किसी भी यूज केस का, क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। उस डेटा को एनालाइज करने के बाद में फिर उसको हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा विजडम है, जो पर्सन आपको मेंटर कर रहा है, वो आपको गाइड करता है कि इसके बिकॉज डेटा ऑल सब कुछ ठीक है तो आप जा सकते हैं। तो जितने यूज केस आपके पास आते हैं उन यूज केस को हम मैनेज करते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या, बिजनेस एमबीए, जितने भी एमबीए सबके लिए इंपॉर्टेंट ही है कि आपके पास, आप प्रोग्रामिंग कम करोगे या लेकिन डिसीजन ज्यादा लोगे। प्रोग्रामिंग कम, डिसीजन ज्यादा। और एमसी वाले केस में उल्टा होता है, आप प्रोग्रामिंग ज्यादा करते हो, डिसीजन कम लेते हो, क्योंकि आपका जितना भी आपका काम होता है बैकएंड का काम होता है। मतलब आप कस्टमर फेसिंग कम करते हो एमसी वाले, और एमबी वाले कस्टमर फेसिंग ज्यादा करते हैं। मतलब फ्रंट एंडिंग आपकी रहती है कि यूजर आपको फेस करता है, आपको डिसीजन इमीडिएटली लेने पड़ते हैं। सपोज कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे एचआर मैनेजर हायर हुए, तो आपको इमीडिएटली डिसीजन लेना पड़ता है कि पर्सन को इन करना, आउट करना है। इन आउट के डिसीजन में आपको पूरा डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। इनके जो इन कर रहा है उसके पीछे XYZ रीजन है, आउट कर रहा है तो XYZ रीजन है। तो पूरा बिजनेस इंटेलिजेंस के बाद भी डिसीजन ली जाती है, अदरवाइज चीजें बाउंस बैक करती है। सिर्फ 11 यूज केसेस हैं बिजनेस इंटेलिजेंस के जिसको हम यूज करते हैं। पहला सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। सबसे पहला काम एमबीए वाले पर्सन, इनकेस आपका मार्केटिंग या सेल्स का डोमेन है तो पहला काम आपका ये होगा, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, टारगेट मिल जाएगा। कि आपको ये ट्रांजेक्शन ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि वो डे एंड पे आप डोमेन आपका वो है, उसको हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग, आपको कस्टमर बेस बनाना पड़ेगा अपने, कौन से कस्टमर मेरे लिए अच्छे हैं, कहाँ से मुझे सोर्स मिल सकता है कस्टमर्स का, और कौन कस्टमर मेरे प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है। तो सेगमेंटेशन टारगेटिंग के लिए आपके पास है। तो इसके लिए आप एक्सेल यूज कर सकते हो, पावर बीआई यूज कर सकते हो, टैबलो यूज कर सकते हो, कॉग्निज यूज कर सकते हो। ये सारे साइंटिफिक टूल्स हैं जो आप इस सेगमेंटेशन टारगेटिंग में आप हेल्प कर सकते हैं। टारगेटिंग के लिए आप बिजनेस की हेल्प ले सकते हो कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन सा है, क्या बाइंग कैपेसिटी चाहिए, तो उस हिसाब से डेटा फिल्टर करके आप अपना डेटा आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास रिड्यूस ह्यूमन बायस। ह्यूमन बायस क्या होता है आपके पास में, सपोज कोई पर्सन कस्टमर हो सकता है लेकिन आपको पसंद नहीं है वो, वैसे लास्ट टाइम से झगड़ा हो गया आपका, तो उससे क्या होता है, आप बिजनेस के लिए वो कस्टमर है, वो रेवेन्यू दे सकता है बिजनेस को, लेकिन बिकॉज आपका पर्सनल रिलेशनशिप उससे अच्छा नहीं है, तो आप क्या करते हो एज ए इंडिविजुअल उसको क्या करता है। एमएल स्टैंड फॉर मशीन लर्निंग। किसी को एक वो था, मैसेज था। तो मशीन लर्निंग जो इकोसिस्टम यूज कर रहे हैं हम इन इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो रिड्यूस ह्यूमन बायसनेस मतलब आपका जो पर्सनल ओपिनियन है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इम्पैक्ट नहीं करे। आपको इंडिविजुअली किसी से कुछ दिक्कत है तो दिक्कत आपकी पर्सनल है, ऑर्गेनाइजेशन है। सपोज आपने फिशिंग करनी है, सपोज फिशिंग करने जाते हो तो आपको तो मुझे स्ट्रॉबेरी खाना पसंद है, या जैसे मुझे कोई स्पेशल फ्लेवर पसंद है किसी भी आइटम का। जब फिश के लिए आप जाते हो आप, तो फिश को स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है, फिश को तो वॉर्म्स ही पसंद है, कीड़े ही पसंद है, कीड़े आपको उसको फिश करने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से आपको टारगेट जो आपके पास है, ह्यूमन जो आपका ईगो है या ह्यूमन बायसनेस है, उसको साइड करना पड़ता है। मशीन लर्निंग उसको हेल्प करता है। मशीन लर्निंग बेस्ड जो भी डिसीजन होगा वो ऑटोमेटेड होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें नहीं होता। आपको मुझे कस्टमर सेगमेंटेशन करके दे दे, मशीन लर्निंग करके दे देगी। वो चाचा का मामा दादा जो भी है, किसी का पर्सनल रिलेशनशिप में कैरी नहीं है, इट इज डिपेंड ऑन मशीन लर्निंग इकोसिस्टम। उसने कहा कि आप इसको फाइनलाइज कर दिया कस्टमर को, ये गुड टू गो है, वी कैन गो एट। उसके बाद एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग है। इफ डेटा इज ड्यूली वेरीफाइड बाय मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, तो वो एरर के चांसेस काफी कम हो जाते हैं उसमें। और पॉसिबिलिटी क्या है, उसका कन्वर्जन अच्छा होगा और आपको इमीडिएटली उसका रेवेन्यू मिल जाएगा। कॉस्ट सेविंग आपके पास है। कॉस्ट सेविंग के सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके पास है। इनकेस सपोज किसी तरह से आपको पता लग जाता है कि मुझे एक लोकेशन में बारिश होने वाली है, तो आप लॉजिस्टिक अरेंजमेंट अपना रीप्लान करेंगे। सपोज कर आपका आपका एक बिजनेस है, बिजनेस को एक
डिलीवरी करनी है एक्स लोकेशन पे, एक्स लोकेशन का आज वेदर अपडेट आपने देखा, उस वेदर अपडेट में फोरकास्ट कर रखी है कि एक्स अमाउंट एक्स टाइम पे वो बारिश होगी वहाँ पे, या कुछ मिसहैप होने के चांसेस है, या लैंडस्लाइडिंग जो भी होगी। तो उस केस में क्या कि आप मशीन लर्निंग इकोसिस्टम के बेस पे या आप एस्टिमेशन के बेस पे अपनी लॉजिस्टिक को डिले करते हो, कस्टमर नोटिफाई करते हो बिफोर एंड की बहुत डिले होगा क्योंकि बारिश है। कस्टमर भी क्या है, ठीक है मुझे नोटिफाई कर दिया तो पॉसिबिलिटी है, चलो ठीक है, मुझे फीडबैक भी अच्छा है कस्टमर से, मैं उसको अपनी कॉस्ट, क्योंकि मुझे मैं भेज रहा हूँ बीच में जाके होल्ड हो जाए, वो मशीन खराब हो जाए या गाड़ी खराब हो जाए, तो उससे जो कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी मेरी वो सेव हो जाती है। कोई भी डिसीजन जो एडॉक बेसिस पे ह्यूमन ड्रिवन होता है कई केस में, और विजडम उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो पर्सनलाइज डिसीजन कई केस में रिस्क हो जाता है उसमें। तो कॉस्ट सेविंग क्या है, आपका जो भी ऑटोमेटेड सिस्टम है कॉस्ट सेविंग के आते हैं। कंपटीटिव एडवांटेज आपको मिलती है इनकेस कोई भी आप स्टेबल प्रोडक्ट लेते हो। जैसे आपने कहा कि कोई पर्सन आपको मिलने आ रहा है लेट्स से एक्स लोकेशन से, पटना से मुजफ्फरपुर आ रहा है, तो उस केस में क्या होगी, उसने कहा कि कितना टाइम लग जाएगा, तो आपने उसको एस्टिमेट देने के लिए क्या बोलते हो, 4 से 5 घंटे या 6 से 7 घंटे, जो भी आपका एस्टिमेट टाइम दिख रहा है आप उसको बोल सकते हो। आप क्या करते हो, गूगल मैप पे पटना से यहाँ का डिस्टेंस देख के उसको बताते हो, तो उससे क्या है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बाकी जो बोल रहे हैं 4 घंटे 3 घंटे 4 6 घंटे, वो जो डिस्टेंस है वो आपका डिस्टेंस मोर एक्यूरेट होगा, क्योंकि आपने उसको एक एल्गोरिथम बेस पे या मशीन लर्निंग बेस पे या टूल बेस पे उसको सजेस्ट करा है। तो इसमें चांसेस ऑफ एरर काफी रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि आपने गूगल मैप देख के बोला कि बस अभी के टाइम पे अभी आप निकलते हो तो पॉसिबिलिटी है 4 से 4.5 घंटे लगेंगे और आप गाड़ी से आ रहे हो तो। और दूसरा पर्सन 6 घंटे, कोई 12 घंटे, कोई 2 घंटे बोल रहा है, हवाई जहाज वाला फंडा, तो वो क्या है, बाइस हो जाता है अभी, वो एडवांटेज नहीं मिलेगी जो आपको आपकी प्रेफरेंस की। तो कंप्लीट एडवांटेज आपके पास क्या है कि डिसीजन आपके पास फास्ट आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, रियल टाइम आ रहा है, फास्ट आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, रियल टाइम आ रहा है, तो आपका बिजनेस एज क्रिएट करता है। कोई भी बिजनेस जो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर पाता है, करेक्ट रिस्पॉन्स कर पाता है, वो बिजनेस ग्रो करता है। जैसे जोमेटो आपके पास है, आपका कोई आपने फूड फूड डिलीवरी ऑर्डर करनी है, आपने कोई फूड ढूंढे हो, जोमेटो में मिल गया अभी इमीडिएटली फर्स्ट, उसके बाद आपने उस प्राइस पे मिल गया जिस प्राइस पे कस्टमर ढूंढ रहे हैं, दो आपने डिलीवरी टाइम बता दिया कि जैसे 10 मिनट डिलीवरी हो जाए, तो उसका टाइम भी मिल गया, रियल टाइम में भी डेटा दिख रहा है और उसकी डिलीवरी भी आपको ट्रैक हो रही है कि मुझे वो 10 मिनट में पहुंच रहा है, तो यहाँ पे है अभी राइडर, अभी मेरे पास आ जाएगा। तो ये कंप्लीट एडवांटेज मिलते हैं, जो जोमेटो हो गया, जोमेटो और ये जो बाकी जितने आ रहे हैं प्रोडक्ट, इनका रेवेन्यू मॉडल सब यही है। जैसे मेरे को कोई रेस्टोरेंट से ऑर्डर करता हूँ, रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना और जोमेटो से ऑर्डर करने में डिफरेंस आता है। डिफरेंस आता है कि आप ट्रैक कर पाते हो ट्रांजेक्शन क्या है, और वो थोड़ी ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन है। मतलब ये नहीं कि एक पर्सन ए गया, पर्सन ए को उसने एक्स प्राइस बोला, पर्सन बी को वाई प्राइस बोला, पर्सन सी को जेड प्राइस बोल दिया, ऐसा नहीं करता जोमेटो। वो कहता है कि बस प्राइस लिस्टिंग करके कंप्यूटर ने वो एक्स अमाउंट है किसी वेंडर, तो एक्स ही देगी सबको, ये नहीं पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहा है वो, या मैं कहूँ कि उसको डिस्काउंट देना तो आप टारगेट सेगमेंट को डिस्काउंट देने का प्रोविजन है। तो कंप्लीट एडवांटेज आपको हर एक एल्गोरिथम या मशीन लर्निंग इकोसिस्टम आपको देता है। उससे क्या, इन जितनी कंपनीज आपके पास है इनका एडवांटेज सब यही है कि इनके पास एक एआई बेस्ड एप्लीकेशन है। जोमेटो का जो ऐप है मैं हटा दूं उसमें से, तो जोमेटो का बिजनेस खत्म हो जाता है। जोमेटो का रेवेन्यू सोर्स जो 2% से लेके 30% लेते हैं वो डिलीवरी चार्जेस के अंडर में से, उनका रेवेन्यू है वो। और वो ऐप ही हटकी ऐप क्या है, एमएल बेस्ड एल्गोरिथम है, बिजनेस इंटेलिजेंस उस ऐप बेस्ड ही चल रहा है। तो जोमेटो हो गया या पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, या जितने भी आप गूगल पे वगैरह, इनका रेवेन्यू मॉडल कुछ नहीं है, इनके दुकान नहीं खुली कहीं पे, मॉल नहीं खुल लगे हुए इनके। इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, इनका अपना एक एप्लीकेशन है जिसके लिए चार्ज करते हैं। उबेर हो गया, ओला हो गया, ये क्या है, इनका कोई मतलब इन्होंने कोई 5 स्टार टाइप के कोई रेस्टोरेंट नहीं बना रखी जहाँ जाके पर्सन को कुछ एक्स्ट्रा फील मिलता है, एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलते हैं, नहीं। ये कहती है आपके मोबाइल में एक ऐप है, ऐप में जाओ, आपकी जो प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करने का मैं पैसे लूंगा। ओला की किस में एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपने कहा मुझे एक्स लोकेशन से वाई लोकेशन जाना है, तो मैंने इमीडिएटली ओला मैं इंस्टॉल है तो मैंने लोकेशन डाली, मुझे ड्राइवर्स नियर बाय होंगे तो मुझे मिल जाएंगे। उससे हुआ क्या, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मुझे जगह जगह जाके टैक्सी स्टैंड पे जाकर या ढूंढने की जरूरत नहीं है, ड्राइवर कहाँ पे है, अवेलेबिलिटी है, बस टैक्सी जो भी, टाइम खराब करने की बात हो जाती है। तो मेरे पास एडवांटेज मुझे मिलती है कंपटीशन से अगेंस्ट में। तो आज के टाइम पे यूजर ऑनलाइन बुकिंग में ज्यादा जा रहे हैं, मतलब इस समय जो ट्रैक्शन है, अब टायर 1 टायर 2 सिटी की बात कर रहा हूँ, तो ट्रैक्शन क्या है कि आपके 60% यूजर ऑनलाइन ही जाते हैं। 60% बड़ा अमाउंट होता है, 60% यूजर ऑनलाइन जाते हैं। जब मैं एचसीएल में, तो हम आईआरसीटीसी डेवलप कर रहे थे, आज से 15 साल पहले की बात है, उस समय कुछ डेवलपमेंट आ रही थी। उस समय हमें एक्सपेक्टेड नहीं था आईआरसीटीसी पे इतना क्राउड आ जाएगा। हम तो बना रहे थे ऐसे नॉर्मली कि जो जनरल एस्टिमेशन था कि लेट्स से मैक्सिमम 1 लाख यूजर आएंगे, इससे ज्यादा यूजर कहाँ आएंगे इस पे। वो सडनली जब लाइव हुई तो पहले ही दिन, पहले 2 दिन में वो क्रैश कर गई।
तो फिर हमें एस्टिमेट पता लगा कि बस यूजर इतने सारे यहाँ पे आते हैं, तो हमें इसको प्लान करना पड़े। फिर हम कस्टमर का जो फ्लो है उसको मैनेज करना स्टार्ट करें। फिर हम उसको मंथली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे, डेली बेसिस पे लोड को बैलेंस कर रहे थे कि जितना लोड मेरे पास में, इसलिए IRCTC हर 6 महीने में अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करता रहता है। हर 6 महीने आप देखोगे कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा IRCTC पे आपको। तो ऐसे जितने भी ऐप्स होती हैं वो अपने आप को इम्प्रोवाइज करती हैं, हर 6 मंथ में कुछ ना कुछ नया वर्जन देते रहती हैं। तो पर्पज ये है कि मुझे कस्टमर को एक कंपेटिटिव एज देनी है। अपने पास कंपेटिटिव एज नहीं है तो मैं इसको नहीं सेल करता। मोबाइल जैसे आपके पास है, आप सैमसंग का मोबाइल है, ओप्पो का मोबाइल है, वन प्लस का है, फलाना ढिमकाना, आप एक प्रोडक्ट को क्यों सेलेक्ट करते हो? रीजन होते हैं काफी सारे उसमें। तो कंपनी प्रेफर करती है कि मुझे वो रीजन आइडेंटिफाई करना है और मेक श्योर करना है कस्टमर मेरे प्रोडक्ट के लिए इंक्लाइन करे, जाए उसके लिए। तो आपके पास कंप्यूटर एज क्रिएट करने के लिए ML यूज हो रही है। नेक्स्ट आपके पास है जितने भी BI टूल आपके पास आगे हम पढ़ रहे हैं अभी, पावर BI का डेमो लेंगे इसके बाद हम, उसमें आपके पास इमीडिएटली डेटा एनालिटिक्स हो जाता है। डेटा एनालिटिक्स के केस में क्या है कि आपको इमीडिएटली कस्टमर का बिहेवियर, उसका कंट्रीब्यूशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका प्राइस, पेइंग कैपेसिटी, या उसके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, या उसके मैप, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक कस्टमर बेस है, से वो एक एरिया है इंडिया का, वहां पे ज्यादा बिकता है सामान है, तो मैं क्या करूँ, वेयर हाउसिंग अपनी शिफ्ट कर लूँ अपने वहाँ पे। उससे क्या हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। अदरवाइज हर चीज में दिल्ली से भेज दूँ तो दिक्कत हो जाएगी। तो इनकेस मेरे पास सेगमेंटेशन है, अमेजोन भी यही करता है। जो डिलीवरी होती है आपकी लोग, जो अपने अनटिल हमने स्पेसिफिक डिलीवरी सेलेक्ट नहीं करी है, तो अमेजोन जो नियर बाई आपका स्टॉक है, स्टोर है, वहीं से डिलीवरी करता है उसके। क्योंकि उसको सपोज मैं चेन्नई से दिल्ली देना है, सामान मेरा सिर्फ दिल्ली में ही अवेलेबल है, तो अमेजोन प्रेफर करेगा दिल्ली टू दिल्ली डिलीवर करते हैं। चेन्नई से दिल्ली आके डिलीवर करने का लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि वो कॉस्ट जो ओवरहेड है वो आपको काफी इंकर करते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट से ऊपर जाते हैं कई बार। उसके बाद प्रेडिक्टिव एनालिसिस आप कर सकते हो कि हमने कहा जो डेटा मेरे पास आ रहा है, उस डेटा पॉइंट के साथ में मुझे यूजर कहता है, मुझे डेटा जो मिल रहा है उस डेटा के कॉन्टेक्स्ट में मैं एक प्रेडिक्शन दे पाऊँ यूजर को, फोरकास्टिंग दे पाऊँ। रियल टाइम इंसाइट से आपको क्या है कि आपको बिजनेस का डेटा है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आपके पास है, तो इमीडिएटली आप प्रेडिक्शन दे सकते हो कि पॉसिबिलिटी है कि आपके पास अप एंड डाउन होता है। जैसे MDI है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, वो रियल टाइम प्रेडिक्शन देता है आपको। ऐसे नहीं बोलता कि वो 2 महीने पहले प्रेडिक्शन देता है, वो ऐसा नहीं करता। वो 7 डेज की प्रेडिक्शन या 3 डेज की प्रेडिक्शन रिलीज करता है। वो इतनी एक्यूरेट होती है कि नेक्स्ट टू 5-6 घंटे का प्लस माइनस होता है ज्यादा। आपको 99% या जैसे 18 to 90% एक्यूरेसी में आती है आपकी प्रेडिक्शन सारी। फिर रियल टाइम डेटा को सिंक कर रहे होते हो। कि जब भी प्रेडिक्शन होती है वो रियल टाइम डेटा पे प्रेडिक्शन होगी तो रियल होती है। अदरवाइज पहले ही आप आपने जैसे BBA ज्वाइन करा, प्रेडिक्शन कर दी कि जोशी ने बस ये मैनेजर बनेगा, वो पढ़ेगा ही नहीं। तो होता क्या है, जब एग्जाम करते रहो उसके बाद आपका मार्क्स की बेस पर कोई ये कहेगी बस हाँ ठीक है, तो स्कोरिंग अच्छी है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है इसको आगे ग्रो करने की। उसके बाद पर्सनल रिकमेंडेशन, जितना अच्छा आप यूजर को आप पर्सनलाइज देंगे उतना बेटर है। रिकमेंडेशन क्या आती है इंडस्ट्री, हम कहते हैं जब भी आप इंटरव्यू देते हो तो हर इंटरव्यू का हम CV अलग बनाते हैं। थोड़ा सुनना, HR कहता है कि जितने भी इंटरव्यूज हैं उनको हर इंटरव्यू का CV अलग बनाना चाहिए। ये रिकमेंडेशन HR की है। मैं एक डिस्कशन में था HR के साथ में, उसने कहा कि HR का पर्पस वहाँ स्टार्ट होता है, कहता है मेरे पास CV सेम आते हैं, लेट्स से मैनेजर चाहिए HR के लिए CV सेम है, मैनेजर चाहिए प्रोडक्शन के लिए तभी CV वही आ रहा है, मुझे मैनेजर चाहिए लेट्स से साइबर सिक्योरिटी के लिए तभी CV सेम आ, तो उससे HR उस यूजर को डाउनग्रेड कर देता है। कहता है ये यूजर सेम है, हर प्रोफाइल के लिए सेम CV भेजता है, मतलब ये प्रोफाइल पढ़ नहीं रहा हमारा, या जॉब ओपनिंग नहीं पढ़ रहा। तो हम प्रेफर करते हैं, HR का रिकमेंडेशन है। कहता है कि जब बिजनेस जो HR है वो रीड करता है कि वो मेरा CV जो आ रहा है मेरी प्रोफाइल के बेस पे बना है। सपोज मेरे प्रोफाइल में लिखा है कि उसको ABC आना चाहिए, प्रोफाइल में उसने लिखा है उसको ABC आता है, तो कहता है मुझे ABC के अलावा बस D भी आता है जो इस डोमेन से बिलोंग करता है, तो HR उसको पहले शॉर्टलिस्ट कर लेता है। तो पर्सनल रिकमेंडेशंस काफी अच्छा बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। जो भी CV आपका बनता है, कई बार होता है ना बचपन में या जब भी आप प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो CV सबका कॉपी पेस्ट होता है, 99 यूजर्स का CV कॉपी पेस्ट होता है। जबकि AI क्या कहता है या BI क्या कहता है, पर्सनलाइज CV बनाओ जो आपका हो जॉब के लिए। आप जो वेंडर आ रहा है या कंपनी आ रही है उसकी रिक्वायरमेंट को स्टडी करो, उस कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से CV में वो कीवर्ड डालो जो उस कंपनी की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने कहा आपका MBA इन HR के लिए कोई आया, तो आपके CV में मैंडेटरी है पेरोल हो, ऑनबोर्डिंग हो, ऑफबोर्डिंग हो, या पेरोल मैनेजमेंट हो गया, इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंटरव्यू टेकिंग स्किल्स होगी, ये सारी चीजें उस CV का पार्ट होनी चाहिए। तो 9 पॉइंट जो आपके पास आ रहा है ये BI ड्राइव करता है। ML से पता लगता है कि रिक्वायरमेंट क्या है उसकी ऑर्गेनाइजेशन की, उस हिसाब से आगे उसको कैरी कर रहे हैं। अनॉमली डिटेक्शन आपके पास है, आपको इमीडिएटली पता लग जाए। सपोज आपके पास आपसे पहले 10 यूजर इंटरव्यू दे के आ गए, ठीक है, सारे हंस रहे हैं,
तो आप चलो ठीक है, इंटरव्यू सबका ठीक हो जाए आप, लेकिन सडनली 10 में से 4 बंदे रोते हुए आ रहे हैं, तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो अनोमलिटी डिटेक्शन ह्यूमन बिहेवियर है, आपका जो आसपास बिहेवियर दिखता है उस हिसाब से आप रिएक्ट करते हो। तो बीआई क्या कहता है, जो अनोमलिटीज हैं डेटा में, जो सिक्वेंशियल डेटा आ रहा है, सडनली कुछ चीज चेंज होगी या ड्रास्टिकली चेंज होगी, तो उस केस को अनोमलिटी डिटेक्शन कहते हैं। जैसे कि होता है कोई सामान ग्रेजुअली एक लेट्स से 100 रुपीज केजी का मिला, सडनली 200 रुपये केजी पहुंच गया, या सडनली वो 20 रुपये केजी पे आ गया। ये 3 पॉइंट जो आपके 100 से 200 या 10 रुपीज केजी, ये तीनों अनोमलिटीज हैं जो डेटा पॉइंट्स हैं। जो नॉर्मल 100 रुपीज केजी आ रहा था वो सडनली 200 रुपीज केजी हो गया, फिर दोबारा 10 रुपीज केजी, फिर दोबारा 100 हो गया। तो ये तीनों पॉइंट जो बने हैं, ये तीनों अनोमलिटीज बनाते हैं। तो ये बीआई मशीन लर्निंग को हेल्प करता है, या मशीन लर्निंग से हेल्प लेता है कि अनोमली डिटेक्शन। इससे क्या होता है, बिजनेस अपने प्रॉफिट को, अपनी प्रोसेस को और अपने स्टॉक को मेंटेन कर पाता है। सडनली सपोज कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसके प्राइस डिप करने लगे हैं, तो यूजर जो भी बिजनेस होगा उस स्टॉक को होल्ड कर गया, उसको ले ऑफ नहीं करेगा। इनकेस वो पेरिशेबल आइटम नहीं है, खराब होने वाली चीज है, तो उसको होल्ड कर लेगा, मार्केट में लेके नहीं आएगा। तो ये पूरी स्ट्रेटजी जो बिजनेस, इवन अमेजोन भी क्या करता है, आप नोटिस करना, अमेजोन साल में सिर्फ 4 बार इवेंट करता है। इवेंट क्या करता है, दिवाली, होली, दशहरा, जो भी आपके पास कुछ ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स करता है जिसपे कस्टमर का इंटेक ज्यादा होता है। और वो हर हफ्ते इवेंट करने लग जाए तो क्या होगा, उसके अपने इवेंट की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। तो अनोमलिटी डिटेक्शन होती है आपके पास। अमेजोन जब इंडिया में आया था तो उसने फर्स्ट ईयर कुछ भी नहीं किया था, फर्स्ट ईयर वो बिहेवियर को स्टडी कर रहा था इंडिया के, इंडियन बिहेवियर। उसने कहा कि मेरे पास इंडियन जो बिहेवियर्स हैं वो क्या है, कि दिवाली, होली फेस्टिवल, दिवाली होली फेस्टिवल, एक दो फेस्टिवल को लेके कि इस पॉइंट पे मेरे वेबसाइट पे मेजर यूजर आते हैं अक्रॉस द मंथ, अक्रॉस द डे, 365 डेज में से मुझे कोई मेजर ट्रांजेक्शन नहीं आता, लेकिन ये 4-5 दिन या 4-5 हफ्ते ऐसे होते हैं पूरे साल में जहाँ पे मेरे पास यूजर मैक्सिमम आता है और मैक्सिमम स्पेंड करता है। उसने बिहेवियर स्टडी कर लिया अपना, पहले फ्लिपकार्ट करता था इसको, उसने इसे कॉपी मार दिया कि बस ठीक है इंडियन, क्योंकि फ्लिपकार्ट पहले था अमेजोन आने से पहले, तो उसने फ्लिपकार्ट को स्टडी किया कि फ्लिपकार्ट दिवाली पे कुछ निकालता है, होली पे कुछ निकालता है, न्यू ईयर पे कुछ निकालता है, क्रिसमस पे कुछ निकालता है। तो उसने पहले 1 साल स्टडी किया बिहेवियर के पैटर्न को, उसके बाद उसने इवेंट लाने स्टार्ट कर दिया कि मुझे जैसे अब दिवाली बोनस आ गया, दिवाली बोनंजा आ गया, कुछ आ गया, तो उसमें क्या कि कस्टमर को वो ट्रैक्शन क्रिएट करता है कि मेरी साइट पे आया, बाई करे, क्योंकि मैं डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, कि उससे क्या है कि वो कन्विंस कर पाता है वेंडर को कि मेरे पास यूजर 10 लाख 20 लाख यूजर मेरी वेबसाइट पे आएंगे, इतना सामान बिकेगा। तो वेंडर भी कहता है चलो ठीक है मैं 10% एक्स्ट्रा ऑफ कर देता हूँ आपके लिए। होता है ना, कोई आपको पहले पता लग जाए कि कोई आपकी शॉप में पहले एक दो कस्टमर डेली आ रहे हैं, अब सडनली आपको कोई एश्योरेंस दे दे कि उस शॉप पे आज 10 कस्टमर आएंगे, तो आपको चलो ठीक है 10 आएंगे, तो एटलीस्ट लेट्स से मैं जब प्रोडक्ट 100 रुपीज का, तो मैं उसको 99 रुपीज या 98 रुपीज 97 रुपीज में बेच दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे ओवरऑल प्रॉफिट ही हो जाएगा। तो जो अमेजोन की स्ट्रेटजी है नॉर्मली डिडक्शन पे ही काम कर रही है, काफी बिजनेस मॉडल इसके ऊपर काम करते हैं, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में इसको काफी हेल्प मिलती है। लास्ट आपके पास से ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन, आपकी जो मैन पावर है एक, आपकी जो मशीनरी है दो, आपका जो वेयर हाउस है तीन, आपकी जो गाड़ी वाड़ी जो भी है वो आपके फोर्थ, असेट्स वगैरह, ये चारों को ऑप्टिमाइज करके रखने का काम भी एमएल कर सकती है। सपोज आपने एक एमएल एल्गोरिथम से कहा कि मेरे पास जो लॉजिस्टिक मैनेज करता हूँ, लॉजिस्टिक कंपनी डीटीडीसी की तरह, लॉजिस्टिक कंपनी मेरे पास, मैंने कहा कि मुझे कोई डिलीवरी करनी है एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट पे। अब पॉसिबिलिटी क्या है, मुझे अब एमएल बेस्ड एल्गोरिथम से तो मैं सेग्रीगेशन कर पाऊंगा, ये एक लोकेशन जाने के लिए मेरे पास एक पैकेट लेके जाऊं या 3 पैकेट मेरे पास एक साथ आ रखे हैं, मैं 5 मिनट की वेट कर लेता हूँ, दूसरा पैकेट भी आ जाए, 3 पैकेट लेके एक जगह चला जाऊंगा। तो जितने भी कुरियरिंग वाले होते हैं, कितने भी डिस्पैच वाले होते हैं, वो यही काम करते हैं, वो सेग्रीगेशन में डिलीवर नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं, आप आपस में ग्रुप बना लेते हैं कि कंपनी ए है, बी है, सी है, तीनों को ही सामान एक्स लोकेशन भेजना है, तो क्या करते हैं एक एक गाड़ी नहीं भेजेंगे, वो क्या करेंगे, आपस में बात करेंगे, गाड़ी सिंगल तीनों कंपनी करके भेज देंगे। ये ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज कहाँ से आएगा, एनालिटिक्स से आएगा। आपको पता हो उस कंपनी का भी, जो आपको वहां पे कुछ आया सामान, उसको भी डिलीवर एक्स लोकेशन करना है, ऐसे 3 कंपनी की लोकेशन एक ही आ गई सामान की, तो कंपनी तीनों अलग अलग राइडर नहीं भेजेगी, अलग अलग गाड़ी नहीं जाएगी, वो सिंगल गाड़ी में वो प्रोसेसिंग को कैरी फॉरवर्ड करेगी। ये आपका ऑप्टिमाइजेशन सोर्स है, ये मशीन लर्निंग के बेस पे एआई को इनेबल करता है, जितना बीआई टूल्स। अब जो केस आपके पास आता है, उस केस में जितने भी आपके पास है, एक्सेल, पावर बीआई, टैब्ल्यू, क्लिक, सारे आपके पास टूल, आपको इनकेस कोडिंग आपके पास ज्यादा हैंडी नहीं है तो उसको इस पावर बीआई के इसमें उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को करियो देख सकते हैं। अब हम हैंड्स ऑन जा रहे हैं पावर बीआई के ऊपर, किसी को करियो उसके ऊपर।
सारे एमबीए के हैं सपोज, यहाँ पे एमसीए का भी कोई है? एमसीए का सपोज कोई नहीं मिल रहा मुझे यहाँ पे। चलिए, अभी जो इंटरफेस आपके पास है पावर बीआई का इंटरफेस है, जो हम कैरी कर रहे हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपके पास सिंपल सा डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप, फ्री टूल है ये। कोई भी यूजर, रिकमेंड करूँगा जितने यूजर आपके पास बीबी एमबीएस हैं सबको ये करना चाहिए। मैंडेटरी टूल है आपके पास इंडस्ट्री में। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस यूज करती है एक्सेल वगैरह, वो सारे पावर बीआई को यूज करती है कॉन्टेक्ट साथ में। चले नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास दे रखा है डाउनलोड का ऑप्शन। जो भी वर्जन आपके पास अराउंड 400 MB के आसपास का टूल है ये। काफी इजी टू ऑपरेट है, मतलब कोई भी इवन आपके पास फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट भी यूज कर लेते हैं इसको। काफी हैंडी है और काफी रोबस्ट है। यहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इनबिल्ड है इसमें, मतलब आपको अलग से कोई मैं कहूँ मुझे मशीन लर्निंग पढ़ रही है ऐसा नहीं है इसमें। बिल्कुल बेसिक टूल है जिसको कोई भी पर्सन इजिली ऑपरेट कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे आया, इंस्टॉलेशन में फर्स्ट स्क्रीन जो दिखेगी आपको ये दिखेगी। मैंने क्या, मुझे एक्सेल फाइल इंपोर्ट करनी है एक। जैसे मेरे केस में डेमो ऑर्डर ले लिया मैंने। इस शीट में कुछ कॉलम्स है, जिस कॉलम्स को हम यूज करेंगे डेटा के कॉन्टेक्स्ट में। डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ अभी क्या है। ये एक्सेल, डेटाबेस, सीक्वल, अमेजोन, गूगल स्टूडियो, शेयर पॉइंट सर्वर, अजोर, किसी भी डेटा सोर्स से डेटा उठा सकता है टूल ये। जो भी टूल आपके पास अवेलेबल सबको वो डेटा रीड कर सकते हैं। आपको आपने राइट हैंड साइड में डेटा टैब के अंदर आपको कॉलम की लिस्ट दिखाएगा ये, कि जो आपने एक्सेल इंपोर्ट करी है उसमें ये कॉलम्स अवेलेबल है। इन कॉलम्स को आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए, ग्राफ्स के लिए, एआई बनाने के लिए, एमएल बनाने के लिए या बीआई बनाने के लिए यूज कर सकते हो। 1500 रिकॉर्ड्स हैं टोटल जो लोड हुए अप्रॉक्स। अब इसमें एक टेबल जो हमने ली थी उस टेबल में ये कॉलम्स आ रहे हैं। इन कॉलम्स में जो इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आ रही है, कहता है ये जो कॉलम की लिस्ट आपके पास, इन कॉलम में जो आइकन है नोटिस करना, जो भी डेट वाला होगा आपको आइकन ऐसा आएगा। जो नंबर आपके पास केस है वो समेशन का साइन के साथ आएगा। इसके अलावा जो भी कॉलम है वो टेक्स्ट है, मतलब वो आपके उस पर कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम। जिस पे कैलकुलेशन हो सकती है वो सारे समेशन साइन के साथ आ रहे हैं। जिस पे आप कैलकुलेशन नहीं करते वो आपके डिफॉल्ट बिना समेशन आ रहे हैं। उसके बाद में आपके पास जो एरिया आपके पास है इस जगह पे आप प्लॉटिंग करते हो। आपको डेटा प्रीव्यू करना है आपका, तो अपनी लेफ्ट साइड से राइट साइड पर, सॉरी लेफ्ट साइड में जो एक्सट्रीम, ये आपकी लेफ्ट साइड पे ये आइकन्स दे रखी है 3। जो अभी डिफॉल्ट आइकन आपका ये है जो उस पे आपका कैनवस दिख रहा है ये खाली। उसके नीचे वाला आइकन आपके पास ये डेटा टैब है, जहाँ पे आप डेटा को प्रीव्यू कर सकते हो अपने। जो डेटा आपने इंपोर्ट किया वो कैसा है, क्या क्या वैल्यूज में है, वो डेटा पॉइंट दे देगा आपको दिखाने के लिए, वेरीफाई कराने के लिए डेटा जो आपने लिया था ऐसा ही था। इसके अलावा कुछ और वैल्यू होंगी तो आप चेक कर सकते हो उसको, टेबल ठीक से इंपोर्ट करी है नहीं करी। चलिए दोबारा से मैं फर्स्ट टैब पे जा रहा हूँ टॉप पे। ये मेरा कैनवस है, यहाँ पे मैं अपनी प्लॉटिंग करूंगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा सेल्स ट्रेंड देखते हैं अपना। ये मैंने डेटा कर लिया, पूरा फुल स्क्रीन कर रहा हूँ ताकि दिखने लगे। तो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मेरे पास, मैंने यहाँ पे ऑर्डर डेट ले ली और वाई एक्सिस पे मैंने सेल्स ले लिया। तो ये प्रोग्रामिंग ही नहीं है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो इसने क्या करा, मुझे डेटा दे दिया प्रोसेस करने के लिए। अभी डेटा जो दिख रहा है आपको अभी, सम ऑफ सेल बाय ईयर दिख रहा है। मतलब जो डेटा दिख रहा है आपको ईयर वाइज दिख रहा है सारा ही आपको, कि 2012 का डेटा है, देन 13 का डेटा, देन 14 का, देन 15 का सब्सिक्वेंटली डेटा दिखा रखा है। अभी जो कहते हैं डेटा को मुझे क्वार्टर वाइज देखना है, तो आप ऊपर आइकन है आपके पास फिल्टरिंग का, हायरार्की का, तो इसको आप हायरार्की चेंज कर सकते हैं। तो 2 बार क्लिक किया मैंने इसको, ये मुझे मंथ पे ले आया। नोटिस करना, सम ऑफ सेल बाय ईयर, क्वार्टर एंड मंथ। तो उससे क्या इमीडिएटली सेल्स का ट्रेंड आपको मिल सकता है। अब इसके ऊपर एल्गोरिथम जो मशीन लर्निंग की वो लगाते हैं, तो यहाँ पे आपका लास्ट स्टेप दे रखा है, कहता है हमें ट्रेंड लाइन चाहिए। ये लीनियर रिग्रेशन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एक
उससे ट्रेंड लाइन दे दी कि मेरा डेटा अपवर्ड जा रहा है, ये ट्रेंड मेरा अपवर्ड है। ठीक है, चलो काम हो गया। मैंने फोरकास्टिंग देनी है मुझे। फोरकास्टिंग के लिए मेरे पास नीचे बॉटम पे सेकंड लास्ट ऑप्शन दिया है। मैं यहाँ पे इनेबल करता हूँ तो मुझे ये प्रेडिक्शंस दे देगा सेट ऑफ ईयर्स के। लेट्स से इसमें कितने के दिए, मैं उसको चेंज कर लेता हूँ। इसमें क्या, मैंने जो प्रेडिक्शन आपको दी है 10 पॉइंट के दी है शायद, हाँ 10 पॉइंट की प्रेडिक्शन दी है। 10 पॉइंट मतलब जो लास्ट पॉइंट आपका मंथ है, जो 10 मंथ्स की प्रेडिक्शन दी है आपको। मैंने कहा मुझे 10 मंथ की नहीं चाहिए, लेट्स से मुझे सिर्फ 3 महीने की चाहिए। ओके, एड करा मैंने, तो 3 मंथ की प्रेडिक्शन दे दी। तो यहाँ क्या नोट्स करना, स्क्रीन पर जो मैंने आपको शो करा, कहता है मेरे पास जो लास्ट सेल है दिसंबर तक की है, दिसंबर 15 की। नेक्स्ट मंथ की सेल मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ जनवरी में, पॉसिबिलिटी है मेरे पास कि मेरी सेल होगी 74,000 अप्रॉक्स। और मिनिमम सेल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 50,000, मैक्सिमम मेरी 98,000 आ सकती है। ये प्रिडिक्शन है। अब इसके लिए आपने कोई एल्गोरिथम नहीं लगाई है, आपने कोई कोड नहीं करा है, कोई पाइथन नहीं लिखा है, कोई आर नहीं लिखा है, ये इनबिल्ट इकोसिस्टम है प्रिडिक्शन का जो ये फॉलो कर रहा है। तो टूल काफी हैंडी है, आपकी प्रिडिक्शंस की इकोसिस्टम के हिसाब से दसते हो। लेट्स से मैंने 1 साल का प्रिडिक्शन ले लिया, तो उसने 1 साल की प्रिडिक्शन दे दी मुझे। 1 साल में लेट्स से जनवरी का डेटा ये है, फरवरी में ये सेल होगी, मार्च में ये, अप्रैल में ये, सारा डेटा इसने आपको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 1 साल का प्रिडिक्शन दे। इस प्रिडिक्शन से बेनिफिट मुझे क्या हुआ, मेरा बिजनेस अगर ये एल्गोरिथम मैं या ये आउटपुट मैं यूजर को देता हूँ, तो यूजर इनकेस बिजनेस है वो, तो मुझे अपनी वेयर हाउसिंग मैनेज कर सकता है। वो कहता है कि क्योंकि मेरे पिछले 4 साल का जो ट्रेंड कहता है कि मेरे पास जनवरी में एक्स अमाउंट ऑफ सेल हो जाएगी मेरी, सब कुछ ठीक रहता है। तो हमने मैं लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स, मैं अपना वेयर हाउस, रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज, मैन पावर, मशीनरी, सब कुछ अरेंज कर सकता हूँ। और मुझे एंटिसिपेशन हो जाए कि मेरे पास ये है। जैसे आपको पता लगे कल क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो क्या करते हो आप पढ़ना स्टार्ट करते हो कि बॉस इसको एक बार रिवाइज किया जाए ताकि मार्क्स ज्यादा आ जाए। या आपको कोई टॉपिक पता लग जाता है इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो हम क्या करते हैं उस टॉपिक को एक बार और विजिट करते हैं, एक बार दोबारा इसको रीआउट कर लेते हैं। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स बिजनेस को भी हेल्प करते हैं कि उनको एंटिसिपेट करके दे देते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि आपके पास में फ्यूचर में सेल ही हो जाए। और इसके फॉल बैक होने की पूरी चांसेस बता रखे हैं कि मिनिमम सेल में 50,000, मैक्सिमम 98,000 आ जाएगी। तो बिजनेस को पता है, ठीक है मुझे थ्रेशोल्ड पता है, लेकिन मुझे मालूम है कि इतना सेल हो जाएगा। तो अपनी मैं मशीनरी, वेयर हाउसिंग, रॉ मटेरियल, इनके इसकी लोन लेना पड़ता है मुझे, लोन प्लान करके इसको फुलफिल करता हूँ। जितने भी आपके बिजनेस होते हैं सारे इस प्रेडिक्शन पे फोरकास्टिंग बेस्ड चलते हैं। तो इसलिए आपके पास जब भी आप एमबीए में पढ़ते हो, फाइनेंस अगर आपके डोमेन में है, तो फाइनेंस में हम फोरकास्टेड रेवेन्यू या प्रोजेक्टेड रेवेन्यू पे काम करते हैं। प्रोजेक्ट रेवेन्यू क्या होता है, आपने मंथ एंड करा अपना, तो नेक्स्ट मंथ का प्रोजेक्शन ले लिया, या आपने ईयर एंड का तो नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्शन ले लिया। उससे क्या कि आपका बिजनेस जो मॉडल है, उस मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में आपको कोई ऐसी चीज है जो आपने जो प्रोजेक्शन में आपने टारगेट लिया है, या प्रोजेक्शन में दिख रही है कि मुझे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है उसके लिए। जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे एक मैन पावर और चाहिए होगी, या एक मशीनरी और चाहिए होगी, या एक गाड़ी और चाहिए होगी, तो मैं उसका प्लान करना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि मुझे जब पीक टाइम आता है तो मुझे वहां पे ऐसा नहीं हो कि मैं बिजनेस लॉस कर दूं। अमेजोन भी क्या करता है आपके पास, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, दिवाली होली के से पहले आप वेंडर्स को नोटिफाई करता है कि ये इस डेट को हम ये इवेंट करने वाले हैं। तो जो वेंडर होता है वो कहता है ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मेरे पास एक साथ 25 ऑर्डर गए थे, मैं फुलफिल नहीं कर पाया, इसलिए मेरे पास जैसे 5 ऑर्डर मेरे कैंसिल हो गए थे। एज ए वेंडर बात करता हूँ मैं। तो 10 में से 5 ऑर्डर कैंसिल हो गए, मेरा 5 मतलब मान लीजिए 30% का रेवेन्यू लॉस हो गया था लास्ट ईयर मेरा। दिवाली के केस में लगभग 15 ऑर्डर मेरे पास आए थे, 15 में से 10 ही मैं सर्व कर पाया, 15 का मुझे रिटर्न करना पड़ गया, या 15 का मुझे रेवेन्यू नहीं मिला, 15 में से 5 का रेवेन्यू नहीं मिला। तो और वो डेटा मेरे पास है इस समय, और अमेजोन मुझे वो डेटा दे पाता है कि इस प्रोडक्ट की लास्ट ईयर सेल ये थी, कंज्यूटिव लास्ट ईयर से सेल ये आ रही है, तो पॉसिबिलिटी है इस साल ये आएगी। तो अमेजोन एनालिटिक्स करता है अपने वेंडर्स के लिए, अमेजोन को फोरकास्ट करके देता है कि पॉसिबिलिटी है कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड एक्स होती है, तो मेक श्योर करो आप अपनी इस लोकेशन, तो लोकेशन में डिफाइन करता है कि दिल्ली में ये, यूपी में ये, बिहार में ये, झारखंड में ये, और राजस्थान वगैरह में ये लोकेशन डिमांड आ सकती है। तो जो वेंडर होता है वो कोशिश करता है कि इसके जो अमेजोन के अपने वेयर हाउसेस हैं, वो अपना ना प्रोडक्ट पहले ही प्लेस कर दे। उससे क्या होगा, आपका जो ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। अब रेवेन्यू लॉस नहीं हो तो ठीक है, आपने एक कहीं पे एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे दिया, कोई बात नहीं, वो वापस आ जाएगा, लेकिन आपका जो ऑर्डर आया, ऑर्डर फुलफिलमेंट होगी, और कस्टमर का फीडबैक ठीक रहेगा। अगर आपने कोई ऑर्डर दे दिया, आप किसी को गिफ्ट करने के लिए ऑर्डर दिया, सपोज आपने वो ऑर्डर मिला ही नहीं, कैंसिल कर दी, वेंडर ने कैंसिल कर दिया कि स्टॉक ही नहीं है, तो उससे क्या होता है, हम नेक्स्ट टाइम उस प्रोडक्ट को बाय नहीं करते हैं। एक सेंटीमेंट ब्लॉक हो जाता है यूजर का। तो ये फोरकास्टिंग वहां के लिए आती है। अब थोड़ा सा और इस पर एक और केस लेते हैं, लेट्स से मैंने थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। अब ये कहता है मेरा जो सेल है, लेट्स से
मैं कस्टमर का सेगमेंटेशन करता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास जो सेल है टोटल किस प्रोडक्ट की आ रही है, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कैटेगरीज है, ठीक है। तो मेरा मेजर जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है टेक्नोलॉजी से आ रहा है। थोड़ा सा रीडेबिलिटी दे रहा हूँ आपके लिए, मैं थोड़ा साइज बढ़ा रहा हूँ मैं फॉन्ट का आपके लिए। उससे क्या होगा, आप सारी चीजों को इमीडिएटली विदाउट एनी हर्डल अंडरस्टैंड कर सकते हो। कहता है मेरे पास जो टोटल सेल हुई है मेरी एक्स अमाउंट जो भी हुई है, उस टोटल सेल में से मेरा मेजर कंट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी का है। अब टेक्नोलॉजी के अंदर भी कहते हो टेक्नोलॉजी में कौन सी चीज थी जो मैंने ज्यादा बेची है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे अपनी सब कैटेगरी डाल सकते हो। तो ये फर्दर इसको ब्रेक करके देता है कि इसमें इस टेक्नोलॉजी में से ही फोन को आपने ज्यादा बेचा है। उससे क्या हो, इमीडिएटली आप एज एन मैनेजर आप किसी बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हो या मैनेज कर रहे हो, तो इमीडिएटली 1 सेकंड के अंदर अपनी ट्रांजेक्शन को डिसीजन में कन्वर्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप नॉर्मल एक्सेल पे या कोई पेपर पेन पे काम करें तो शाम हो जाएगी, जब तक कस्टमर आपका चला जाएगा बिजनेस लॉस हो जाएगा। तो जितने भी बीआई टूल आपके पास आते हैं जो हम कर रहे हैं, पावर बीआई या टैबलो हो गया या क्विक या जैसे भी टूल जितने आपके पास अवेलेबल है, सारे सबका पर्पज ये है कि मुझे यूजर डिसीजन जल्दी ले पाए। तो कहता है जो जो फोन है मेरे पास, ये आपके जो टोटल सेल है टेक्नोलॉजी की, उसमें 21% का कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। मतलब मुझे कोई सेल करनी है अगर, तो मुझे मेक श्योर करना है कि टेक्नोलॉजी में से फोन मेरे पास होना चाहिए स्टॉक में हमेशा, अदरवाइज मैं कस्टमर लॉस कर जाऊंगा। ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अभी जो कहता है ये जो डेटा सेट कहता है मुझे अपनी लोकेशन वाइज चेक करना, चलो उसको। तो मेरे पास यार मैप का सिस्टम दे रखा है इसने। कहता है कि आप मैप के ऊपर देख लो मेरे कस्टमर ज्यादा कहाँ पे हैं। लेट्स से मैंने क्या करा, मैंने इस पे स्टेट डाल लेता हूँ, स्टेट दिया, और इस पे मैंने सेल ले लेनी चाहिए बबल साइज पे, और इसमें सब इंडिया देख रहा हूँ मैं, फोकस इंडिया पे कर रहा हूँ। तो मैंने कंट्री ले लेता हूँ फिल्टर में, इंडिया। सिलेक्ट हटा लेता हूँ पहले मैं, क्योंकि सारे सिलेक्ट हो रखे हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, क्लीन करा इसको पहले मैंने, अब इंडिया लेता हूँ। बाई डिफॉल्ट सारे सिलेक्ट आ रहे थे वो, इंडिया इनेबल करा। अभी कह रहे जो बड़ी डॉट्स आपके पास आ रही है, इट मींस यहाँ पे सेल ज्यादा है। स्टडी कर लेते हैं उसको पैरेलली। मैंने कहा लेट्स से स्टडी करते हैं आपके लिए। मैंने कहा एक टेबल ले ली साथ में मैंने इसके, मैंने स्टेट देख लेता हूँ मैं इसको, स्टेट के नाम, उनका सेल कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। अब ये जो स्टेट आ रही है सारी दुनिया की आ रही है। मैंने कहा एक काम करते हैं, जो मेरी फिल्टर था इसका कंट्री का, वो मैं उठा के पेज पे डाल देता हूँ। दोबारा कर लेता हूँ, टाइम लग रहा है उसमें। पेज पे ले लेते हैं कंट्री के फिल्टर। उससे क्या होगा, जितने भी इस पेज पे विजुलाइजेशन होंगे सब पे वो अप्लीकेबल होगा। उससे मैं बाहर का हर एक इकोसिस्टम पे फिल्टर देने की जरूरत नहीं है। चलिए साइज बढ़ा देते थोड़ा सा मैं स्टेट्स का अपना 20 पॉइंट्स कर दिया, और थोड़ा ज्यादा हो गया, 15 कर लेता हूँ। सॉर्ट कर लेता हूँ उसको मैं। 1 सेकंड के अंदर आपका एनालिटिक्स आपकी स्क्रीन पे है, मैक्सिमम 2 मिनट। उस पर क्या हुआ, यहाँ महाराष्ट्र में आपको दिख रहा है कि मेरे पास जो मैक्सिमम सेल हुई है 26,000 की हुई है। तो यहाँ पे मेरा हाईलाइट भी आपका बड़ा डॉट्स आ रहा है। तो इससे क्या, यूजर का जो कॉन्टेक्स्ट है, आप इमीडिएटली अपने कस्टमर को सेगमेंट कर पाते हो, यूजर को डिटेल कर पाते हो। अभी कहता है इस स्टेट के अंदर भी मुझे देखना है कि सिटी में ज्यादा है। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर जो डेटा था इसमें स्टेट सिटी का नाम, स्टेट के साथ में सिटी डाल देता हूँ। चलो इसके नीचे में स्टेट के बाद रखना, सॉरी कैटेगरी डाल दी मैंने, सॉरी माय बैड। हम्म। अब इस केस में नोटिस करो आपके पास उन्होंने क्या करा, ये लेट्स से सिटी वाइज सॉर्ट कर लेता हूँ मैं। क्या आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, बिहार के केस में आपके पास में औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, पटना, छत्तीसगढ़, बिहार, जो भी आपके पास है, इसने स्टेट वाइज सिटी वाइज भी दे दिया। अब इसको और भी ज्यादा डिटेल स्टडी करनी है तो इसमें एक ऑप्शन और आता है आपके पास में, इसको आप मैट्रिक्स बेस्ड ऑपरेशन स्टडी कर सकते हो। जैसे मैंने क्या करा, रोज में इसको डेटा दे दिया,
इस केस में क्या है कि इसको आप थोड़ा फोन बढ़ा देता हूँ आपके लिए। इसमें इतने ज्यादा ऑप्शन आपके पास है, जो बिजनेस इंटेलिजेंस पर्सन है इमीडिएटली डिसीजन ले पाता है। जैसे बिहार के केस में मुझे सिर्फ फोकस करना है इसी एरिया पे, तो मैं इंडिविजुअल्स को स्टडी कर सकता हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन को उसके। या लेट्स से मैंने कहा है मुझे लेट्स से कर्नाटका के केस में स्टडी करना है, तो मेरे पास जो कस्टमर इस समय जो डेटा सेट मेरे पास है उस मैंगलोर के आ रखे हैं। उसके बाद में कोई स्टेट आपके लेट्स से गुजरात ले लिया मैंने, गुजरात में भावनगर सूरत वगैरह की इंफॉर्मेशन आ रखी है। तो ये जो डेटा है ये यूजर को इमीडिएटली एक क्लिक करता है कि बस मेरे पास में अपना स्टॉकिंग, कोई सामान मैं बेच रहा हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को सामान बेचे, तो मुझे कस्टमर बेस मेरा सबसे ज्यादा यहाँ पे है। और इसमें कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिका है वो देखना हो तो आप स्टेट वाइज को फर्दर नेक्स्ट लेवल पर ले सकते हो। जैसे मैंने कहा गुजरात में क्या ज्यादा बिकता है, लेट्स सी, चेक करते हैं। तो मैंने क्या करा, लेट्स से यहाँ से सिटी हटा देता हूँ, मुझे मुझे नहीं चाहिए सिटी। अब मुझे चाहिए कि इसमें मुझे कौन सी कैटेगरी ज्यादा बिकती है, कौन सा प्रोडक्ट की कैटेगरी ज्यादा बिक रही है। तो मैंने कहा गुजरात में फर्नीचर ज्यादा बिक रहा है, टेक्नोलॉजी उससे कम बिक रही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये आपके पास में, और कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के नाम देखने हैं वो भी देख सकते हैं। जैसे मैंने क्या करा, प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे मेरे पास अगर है डेटा, देना डेटा आपके पास होना चाहिए, प्रोडक्ट का नाम डाल दिया मैंने, तो स्टेट में कौन सा सामान ज्यादा बिक रहा है। दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली के केस में मैं कह रहा हूँ मेरे पास में स्टोरेज की डिवाइसेस हैं, किचन है वगैरह है, ज्यादा बिक रही है डेटा पॉइंट के साथ में कैरी करने के लिए। तो प्रोडक्ट के नाम थोड़े लेंथी हो जाती है, इसलिए वो थोड़ा सा हाइड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास डिटेलिंग आ जाती है चीजों के साथ में, जैसे आपके पास केस करना, उससे क्या चीजें आपकी थोड़ी स्ट्रीमलाइन रहती है। और बिजनेस को जितना डेटा आप स्ट्रीमलाइन करके दोगे आपके लिए ईज रहता है काम करने के लिए। अब यूजर कहते हैं इन सारी चीजों को, यूजर करता है कि मुझे एक डैशबोर्ड पर देना है। तो यूजर क्या करता है, एक नया एक डेटा पॉइंट दे दिया, उसने कहा चलो ठीक है मैं काम करता हूँ, मैं आपको एक अपने केपीआई दिखा दूं। पहले केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने डिफाइन होते हैं। ये कुछ वैल्यूज है मेरी, इन वैल्यूज को मैं यूज कर रहा हूँ। लेट्स से मैंने इसको अपनी राइट साइड, राइट कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में रख लिया। इसको मैं लेआउट इसका हॉरिजॉन्टल दे देता हूँ। और इसमें जो कार्ड्स हैं आपके पास है, इन कार्ड्स का साइज वगैरह, बॉर्डर बॉर्डर, शेडो वर्डो कुछ देनी है आप यहाँ, सब कुछ दे सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉन्ट आपके पास है, प्लस माइनस कुछ करना हो किसी का तो, मतलब ये इतना हैंडी टूल है आपके पास। ऐसे सारी चीजें मुझे मिलियन में देखनी है। वैल्यूज आ गई आपके पास में, लेबल जो आ रहे हैं आपके पास में, इन लेबल्स में जो सम ऑफ सेल वगैरह लिखा रहा है इसको आप थोड़ा फॉन्ट ज्यादा बढ़ाओगे। डन। अब से साथ में कहता हूँ मुझे जो डेटा है आपके पास ये भी आना चाहिए। लेट्स से इसको कॉपी पेस्ट मान लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। थोड़ा साइज छोटा कर दूँ उसका मैं, और इसमें से मैं सब हेडिंग्स हटा रहा हूँ, थोड़ा सा रीडेबिलिटी ठीक रहेगी मेरी। उसके बाद में आप नीचे जो मैप है आपका, मैप को यूज कर लो आप। एक्शन डालने उसका, ठीक है। इसमें फिल्टर कर लेंगे इंडिया का भी, अभी फिलहाल इसको रखा हूँ। इसके नीचे कुछ और चाहिए आपको, लेट्स से मैंने एक चार्ट ले लिया, लेट्स से ई मैट्रिक्स ट्री मैप ले लिया। ट्री मैप में मैं सेगमेंट की सेल दिखा दी मैंने। कंज्यूमर जो आपके पास है हाईएस्ट पोटेंशियल में जा रहा है इस समय, डेटा लेबल दिखा दिया इसको मैंने। इतना इजी आपके पास है, इवन आपके पास 9th 10th क्लास का स्टूडेंट्स को ऑपरेट कर सकता है। हाँ, पूरे डेटा पे मैंने क्या करा है, यूजर को एक चॉइस दे दी। लेट्स से चार्ट थोड़ा छोटा कर दूंगा वाला मैं तो यूजर को मैं कंट्रीज चॉइस कर देता हूँ सेलेक्ट करने के लिए। मैंने क्या एक स्लाइसर लिया, कंट्रीज में डाल दिया। ये पूरा डैशबोर्ड इतना इंटरेक्टिव है यूजर के लिए कि यूजर इमीडिएटली इस चार्ट के बेस पर डिसीजंस ले सकता है अपने। थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ उसका मैं, 20 पॉइंट दे देंगे। अब मैंने कहा यहाँ से मैंने चॉइस करा, लेट्स से ऐसे इंडिया चाहिए मुझे, एडिटिंग नहीं दे रखी, तो लेट्स से मैं यहाँ पे चाइना ले लेता हूँ। चलो पहले कहाँ गया, इंडिया है चलो।
तो सारे नंबर जो स्क्रीन पे आपके पास सारे चेंज हो जाएंगे आपके पास इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया की जगह आपने हंगरी ले लिया, सपोज नंबर हंगरी के हिसाब से चेंज हो गया। उसकी जगह आपने लेट्स से ग्रीस ले लिया। तो जैसे डेटा पॉइंट्स आपके पास है उस डेटा पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में आप ले सकते हो। इंडिया एंड हंगरी चाहिए तो कंट्रोल दबा के मल्टी सिलेक्शन ले लो आप। तो ये जो नंबर्स आपके लेफ्ट साइड में चेंज हो रहे हैं ये सारे उसके डेटा पॉइंट्स के साथ आ रहे हैं। वो सारे चार्ट उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। जितना डेटा आपका क्लीन रहेगा यूजर उसको डिसीजन को इमीडिएटली रिजॉल्व कर सकता है। अदरवाइज आप इस चार्ट को आप नॉर्मल केस में बनाते हो काफी टाइम लगता है और इमीडिएटली ये आपको सोल्यूशन दे देता है। उसके अलावा एक ऑप्शन और इसमें है, आपके पास लॉगिन है, अगर इसका फ्री लॉगिन मिलता है, इस लॉगिन को आपने बनाया, मैंने सेव कर दिया लेट्स से इसको BI नाम दे दिया लेट्स से इसको 28। मैं इसको क्लाउड पर सेव करता हूँ और ये लिंक आपको किसी भी यूजर को दे सकता हूँ। जैसे मैंने इसको इसमें रख दिया। अब ये लिंक जो आपके पास आया है ये किसी भी ब्राउजर में, किसी भी ब्राउजर जो आपका है, आपके पास वैलिड लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो उस पर ये खुल जाएगा। अब मुझे पावर बीआई अपने सिस्टम पे नीचे जितने मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशंस के हैं टॉप हायरार्की, वो सारे पावर बीआई इंस्टॉल नहीं करते। वो क्या करते हैं, अपने चार्ट्स को ब्राउजर पर चेक करते हैं। इंटरफेस सेम है आपके पास में, जो आप डेटा लोगे उस हिसाब से डेटा को रिस्पॉन्ड करेगा। ये मैप चला गया, मैप की परमिशन में हटा रखी है इसलिए मैप नहीं गया वहाँ पे। डेटा आपके जितना डेटा आपके पास आपके चार्ट में होगा सारा आएगा, मतलब फाइल में होगा तो सारा डेटा आपको प्रीव्यू करा देगा वो। अब ये लिंक आपके पास, आप चाहो तो मैं इसको पीपीटी में दे सकता हूँ किसी को, मैं चाहूँ PDF में देना चाहूँ या एक्सेल में देना चाहूँ एक्सेल में दे दो। ये आप चाहो किसी को आपको शेयर करना है, QR कोड देना, QR कोड स्कैन करके रिपोर्ट देख ले। दुनिया भर के ऑप्शन है, ऑर्गेनाइजेशंस को काफी अच्छी तरह यूज करती है पावर बीआई को, क्योंकि इसमें सारी मशीन लर्निंग एक्टिविटीज इनबिल्ड आती है। यूजर को एक लाइन कोड की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कस्टमाइजेशन देना पड़ता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बनानी पड़ती है, नहीं तो पाइथन पे जाना पड़ेगा आपको। तो पाइथन कोड मैं अभी कन्वर्ट नहीं करूँगी, मुझे एमसीए का कोई स्टूडेंट इसमें दिखा नहीं ना, नोटिफाई हुआ मुझे, तो मैं पाइथन का कोड नहीं कर रहा अभी। इन दो ऑल दो हम पाइथन का कोड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो उसकी नहीं आती है। तो ये आपके पास में इकोसिस्टम अवेलेबल है। जो जितना ज्यादा आपके पास पॉइंट रहेगा डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए, उतना ही आप बिजनेस को हेल्प कर पाओगे डिसीजन लेने के लिए। बिजनेस को जितनी जल्दी इंफॉर्मेशन मिलेगी और प्रेसाइज इंफॉर्मेशन मिलेगी, बिजनेस को जल्दी रिएक्ट करता है। कोई क्वेरी इसमें आप किसी के, अदरवाइज वी कॉल ऑफ। कोई क्वेरी किसी की? कितने स्टूडेंट इसमें जिन्होंने पावर पे पहले काम कर रखा है? रेज योर हैंड, और है तो कोई? आदित्य, अमितेश, अंजलि, अनुजा, अश्मा, इकबाल, काजल, काफी स्टूडेंट कैंडिडेट्स हैं। एनी फीडबैक? चलिए डन, नो इशू। किशोर, यू कैन टेक ऑफ। चलिए फिर वाइंड अप करते हैं। आई होप कुछ कम्युनिकेशन इशू आ रहा है। चलिए थैंक यू। और जिसने अटेंड करा उसके मेल आईडी पे लिंक आएगा डाउनलोड करने का सर्टिफिकेट को, देख यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर आल्सो। देन थैंक यू।
Yes, you can leave now. No issue. Thank you.